So basically, in the previous class, we discussed about the basics of the budget. We discussed about the basics of the interim budget, comparison between the budget and the interim budget, and then we discussed the focus areas of the budget, right? So let's quickly rewind in 2 minutes, and then we will restart where we left, okay? So approximately 1 hour we will discuss the budget, and after that we shall start the economic review, okay? So this will be our lecture plan today, right? So budget basics we discussed. It is the annual financial statement, Article 112, Department of Economic Affairs, and there are various documents, especially coming from the FRBM and from Article 112, 13 and 110, Finance Bill and Demand for Grants. Then we have the process of preparation of budget, presentation of budget. There are two parts, Part A and Part B. Part A, there is a discussion about macroeconomic aspect, and Part B deals with the finance bill, that is the taxation proposals, right? Then there are three funds that you study: consolidated fund, public, and the contingency fund. Article 265, expenditure, Article 265, taxation not without the approval of Parliament. 266, expenditure not basically cannot be levied without the approval of Parliament, and Article 112, annual financial statement. Interim budget is prepared this year because of the elections, and there is no constitutional provision, but there is Article 116 which talks about the vote on account. So it's a kind of advance approval which is taken from the Parliament for the expenditure to be done in the next 4 months after the April, right? So it is vote on account, and there is no possibility of any tax rate change in this, okay? Then we compared between the two. It is vote on account, it is complete discussion, then this is concise, this is detailed, this is only for 2 to 4 months, this is for the entire fiscal year. Then we started discussing the focus areas: Viksit Bharat, prosperous Bharat in harmony with the nature, modern infrastructure and opportunities for all, okay? So environmental care, the modernization and the inclusive growth, three aspects which are focused. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Priyas. Then what is the economic management strategy that we have currently? So we are focusing on the infrastructure, digital public infrastructure, capex, budget is trebling, okay? So these 3 points are focusing on the infrastructure and the capital budget. Then GST is increasing the tax base, proactive inflation management, strong financial sector, and we have the GIFT IFSC authority, which is basically working for the creation of opportunities for global capital. Then we discussed about the GIFT IFSC. Global context, we discussed that now there is a concept of friendshoring, reshoring, disruption and fragmentation of supply chains. There is a competition for critical minerals and the technologies. And globally, if we see overall, there is high inflation, high interest rate, growth is poor, public debt is high, trade growth is low, and climate change challenge is there. After the COVID, there is a crisis of food, fertilizer, finance and fuel, right? Then we discuss some key indicators, out of which GDP growth, then CPI inflation. So we are targeting it to be in the range of 4.5% next year. Fiscal deficit. So for the current year, we have revised the target to 5.8%. For the next year, this will be 5.1%, right? Then agricultural growth, industrial growth, services growth, unemployment rate. The unemployment is declining, but the quality of employment is a challenge, right? Now in the focus areas, we had 4 areas: poor, youth, farmers and women, right? For each of these category, we have some initiatives, like we have Skill India mission for the youth, Skill India, education, declining unemployment rate, and PM Shri Yojana. Then for the farmers, we have PM Kisan Yojana, where we give the cash subsidy, PM Fasal Bima Yojana for the comprehensive insurance of agriculture, E&M for the
connectivity of physical mandi through the digital portal, PM Kisan Sampada Yojana for the food processing, and PM formalization of micro food processing enterprises for the small scale enterprises in the food processing sector, right? Nari Shakti, that is focus on the woman. Mudra loans. So in the Mudra we have three categories: Shishu, Kishore and Tarun, right? Increase female enrollment in the higher education, PM Awas and Lakpati Didi concept, okay? So basically देखिए आपको इसको यूज कैसे करना है. एग्जाम में दे विल नॉट आस्क कि बजट में क्या पूछा गया था, बजट में क्या दिया गया था. यू हैव टू यूज इट इन योर आंसर्स ऑफ द मेंस एंड फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. व्हेन यू रीड दीज स्कीम्स, जब आप ये स्कीम्स आप न्यूज़पेपर में देखते हैं या अदरवाइज आपको स्टैटिक पोर्शन कहीं देखने को मिलता है, तो फोकस ऑन दीज स्कीम्स. और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, ठीक है, ये हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स है, ये हमें यहाँ से पता चलता है क्योंकि सरकार कह रही है कि हम लोगों ने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं. तो ये सभी स्कीम्स पुरानी स्कीम्स हैं, नई स्कीम्स तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है. ये सारी स्कीम इस वाले बजट से पहले कभी न कभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, ठीक है. तो ये फंडामेंटल स्कीम्स हैं. यहाँ से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है. अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो हम बजट का रेफरेंस देकर के कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मुद्रा लोन दे रहे हैं, फीमेल एनरोलमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, पीएम आवास में उनको घर दे रहे हैं, लखपति दीदी कॉन्सेप्ट में उनको एम्पावर कर रहे हैं माइक्रो एंटरप्राइज करने के लिए. तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से यूज करें, ठीक है. तो पर्पस ये है, क्योंकि एग्जाम में वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बट हमें इससे ये आइडिया लगता है कि क्या क्या मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट भी कह रही है कि ये हमारे मेजर इनिशिएटिव्स हैं. गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है, गवर्नमेंट इसको बोल रही है कि ये हमारे मेजर इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है. लखपति दीदी कॉन्सेप्ट ये है, जो हमारी वुमेन्स हैं उनको हम लोग बेसिकली माइक्रो एंटरप्राइजेस ओपन करने में उनको हम सपोर्ट करेंगे थ्रू कंसेशनल लोन, थ्रू स्किल डेवलपमेंट, थ्रू अदर स्कीम्स जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं. और हमारा टारगेट है कि दे शुड बेसिकली जनरेट द इनकम ऑफ 1 लाख रुपीज पर एनम. लखपति का मतलब यहाँ पे होता है 1 लाख रुपए एक साल में उनकी इनकम जनरेट हो. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है. बिल्कुल सब आ जाएगा. मैंने सारी जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, जो ये एनआरएलएम है, इसके अंदर जो भी हमारी एग्जिस्टिंग एंड फोकस है, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उन सबको हम कंबाइन करके फोकस करेंगे. सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आपके एनआरएलएम के अंदर आ जाएगा, ठीक है. देन वी डिस्कस 2 मेजर फोकस एरियाज, बेसिकली 2 मेजर. अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं, अभी ये डिस्कस नहीं किया था. तो बेसिकली आज का लेक्चर हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. यहाँ तक जो है हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो फर्स्ट इज डिक्लाइन इन द हेड काउंट रेशियो. हेड काउंट रेशियो, व्हाट इज हेड काउंट रेशियो? पॉवर्टी चैप्टर में हम इसको डिस्कस करते हैं. दैट इज बेसिकली द नंबर ऑफ BPL, that is a below poverty line, ठीक है. नंबर ऑफ BPL पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन. तो टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन में से हमारी BPL पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, ये हमारा होता है हेड काउंट रेशियो. ये हमारा होता है हेड काउंट रेशियो, ठीक है. और यहां पे जो हम लोगों ने यहां पे ये निकाला है, राइट, ये जो हमने इस पार्टिकुलर डेटा की अगर हम बात करें, तो दिस इज बेस्ड अपॉन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, विच इज गिवन बाय नीति आयोग. तो नीति आयोग ने एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दी हुई है. एक हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमारी यूनाइटेड नेशन भी देता है, वो ग्लोबल लेवल की होती है. वहां पर हमारे टोटल 10 इंडिकेटर्स होते हैं और यहां पर हमारे टोटल 12 इंडिकेटर्स है, ठीक है. तो यहां पर हमारे टोटल 12 इंडिकेटर्स है. सो बेस्ड अपॉन दिस इंडेक्स विच इज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ 12 इंडिकेटर्स. और ये क्या इंडिकेटर्स होते हैं? जो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में काउंट करते हैं, है ना, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी,
एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड एसेट्स, पर कैपिटा इनकम। तो इस तरह से टोटल हमारे 12 इंडिकेटर्स हैं जो कि नीति आयोग ने हमारी कंट्री के कैलकुलेट करने के लिए रखे हुए हैं। ओके, अब ये जो डेटा है, वी हैव टू बेसिकली इंटरप्रेट दिस डेटा। सो इफ यू सी in 2005-06 it was 55.3%. Then in 13-14 data, basically if you see most of the data they will be giving, you know, for the 13-14 also, because the new government came into power in 13-14, right? So 13-14 May it was 29.2, and from 13-14 in 22-23 this is 11.3. This is a very very significant improvement. So first of all, remember this data. Remember this data. That's as per the Niti Aayog National Multidimensional Poverty Index. Now the head count ratio is 11.3%. Remember this data. Okay. This is a significant achievement. If someone asks you what are the achievements of India, we can definitely mention this with the fact. Okay. So what are the initiatives that have been taken for this growth? इसके लिए क्या क्या initiatives हमने लिए हैं? So basically we have taken the initiatives in all the fronts. Okay, तो मेजर इनिशिएटिव्स जो भी गवर्नमेंट के हैं हर एक सेक्टर में, उनको आप काउंट करा दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हेल्थ सेक्टर में देखिए, हेल्थ सेक्टर में क्या इनिशिएटिव्स हैं हमारे? आयुष्मान भारत है अभी, उससे पहले आपका मैटरनल हेल्थ पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी हम लेके आए थे 2017 में, राइट। एजुकेशन सेक्टर में वी आर वर्किंग थ्रू राइट टू एजुकेशन, 2009 से हम इस पर काम कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो अभी आई है, अभी तो इम्प्लीमेंट होनी स्टार्ट ही हुई है, ऑलमोस्ट 2 साल हुई पहले आई है, 2020 में आई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट होनी 2 साल पहले स्टार्ट हुई है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने पॉवर्टी नहीं कम कर दी है, ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, यू नो, विल गो बैक। तो ये जो आपका राइट टू एजुकेशन है, यहाँ से हमारा कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट बढ़ा है, ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ा है यहाँ से हमारा। इसके अलावा और अगर हम देखें हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये आप लिख सकते हैं स्कीम चाहे तो ना, प्लीज यू कैन राइट। तो जो भी इनिशिएटिव्स हमारे हैं फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स, उनको नाम लिख सकते हैं आप लोग। तो किस रीजन की वजह से पॉवर्टी कम हुई है ना, रीजन जो है उसके हमें पता होने चाहिए कि पॉवर्टी ये ऐसे सडनली कम नहीं हुई, इट हैज टेकन टाइम। ओके, एंड नाउ आवर फोकस इज ऑन ईज ऑफ लिविंग। यहाँ पे लिखिए फोकस ऑन ईज ऑफ लिविंग। अभी जो हमारा फोकस है वो है ईज ऑफ लिविंग पे, क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग ट्रेडिशनल वाला हेड काउंट रेशियो बात नहीं कर रहे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ट्रेडिशनल है कि नंबर ऑफ पीपीएल अपॉन टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन। दैट मीन्स यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि उनकी जो हमारी कंट्री की पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे जो लोग हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। बट एक्चुअली ये हेड काउंट रेशियो जो हमने निकाला है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी तरीके से निकाला है, यानी कि 12 इंडिकेटर्स से हमने इसको इंटरप्रेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हम लोग, ये तो बहुत सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन हो गई जो एक ट्रेडिशनल मीनिंग है, लेकिन जो ये डेटा हमारा है ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि हमने 12 इंडिकेटर्स पे काम किया है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, राइट। तो उसके लिए हमने काम किया है ईज ऑफ लिविंग पे। अब हम काम कर रहे हैं ईज ऑफ लिविंग पे, जिसमें हमारी स्कीम्स जैसे कि राइट टू एजुकेशन बताया हमने, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, प्लीज राइट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, और प्रधानमंत्री जनधन योजना, वेरी मेजर इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री जनधन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज बेसिकली, राइट। देन पीएम आवास योजना, एमजी नरेगा, राइट, एमजी नरेगा फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, फ्री हाउस होल्ड गैस कनेक्शंस अंडर उज्ज्वला स्कीम। क्या बता रहे थे आप? हाँ, उज्ज्वला। स्वच्छ भारत अभियान फॉर द सैनिटेशन एंड द वाटर। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर हम सैनिटेशन का भी टेक केयर करते हैं और वाटर का भी टेक केयर करते हैं, वाटर मैनेजमेंट के बारे में भी वहां पर हम बात करते हैं। फूड सिक्योरिटी में लिखिए बिल्कुल, हाँ, गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। एंड वी हैव वेरियस पेंशन एंड इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना,
जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना. So from every area pick up at least one scheme. Okay, so this is an outcome of these schemes. This is an outcome of these schemes. Next very good indicator is, it is also very good indicator, very positive development, the female labor force participation rate. Okay, how many females are now part of the labor force, right? So from 23 to 37, it is a major development. It is like almost 50% jump, है ना? तो 23 का 50% ऑलमोस्ट हो गया 12%. तो अगर हम उसको ऐड कर देंगे उससे ज़्यादा जंप है, यानी कि 50% से ज़्यादा जंप है. इट इज़ ऑल्सो अगेन ए वेरी मेजर शिफ्ट. ठीक है, तो ये डेटा भी आप याद रखेंगे. 37%, अगर भूल जाएंगे तो आप याद रखिए तकरीबन की ऑलमोस्ट 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ऐसे करके याद कर सकते हो आप लोग. ठीक है, 1/3 से थोड़ा सा ज़्यादा है. अब इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो प्लीज राइट. स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मैटरनल हेल्थ एंड मैटरनिटी लीव, स्किल इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मैटरनल हेल्थ एंड मैटरनल लीव्स, higher education initiatives, Stand Up India, where we are promoting the women entrepreneurs. Stand Up India. Feminization of workforce in the agriculture. What is this basically? That because the male members, they out migrate from the village areas in search of the better job, or in search of the basically the work outside their village, either in the another village or in the city. ठीक है, so because of that now their female counterpart, they have to take care of the village lands. ठीक है, तो जो उनकी लैंड होती है, जो उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, उसकी टेक केयर जो है दैट हैज टू बी डन बाय द फीमेल काउंटर पार्ट्स. ठीक है, तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो आपका कंपैरेटिवली फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया फेमिनाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर. अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग एज द गिग वर्कर्स. देखिए गिग वर्कर्स as the drivers or as the delivery people, or they are also providing services otherwise, right? And also after the COVID, due to forced 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 job search, है ना? कोविड के बाद में जब घर में किसी की जॉब चली गई, हस्बैंड की या भाई की, तो जो फीमेल्स हैं वो forcefully they have to search for the job and they got the job. ठीक है, so forceful search of job post covid, right? तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है. और भी जो गवर्नमेंट स्कीम है वो आप लिख सकते हो. ठीक है, नाउ स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल. अमृतकाल आपका कब तक होगा? 2047 तक. ठीक है, यानी कि 100 years ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी? द विजन फॉर द अमृतकाल इज एन एम्पावर्ड. तो ये वर्ड थोड़ा इनको याद कीजिए. ठीक है, पढ़ के भूलिए मत, इनको याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए और फिर टेस्ट पेपर्स में यूज कीजिए. मेंस के आंसर्स में जो आप मेंस के आंसर्स लिखते हो ना, वहां पर आप इसको सोचिए और इसको रिकॉल कीजिए और इसको लिखिए, ये वर्ड्स को वहां पे लिखिए. ओके, तो हमारा जो विजन है दैट इज एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी. ओके, दैट इज टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड विद ए रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर. तो मेजर कंपोनेंट यहां पर क्या है? 5 कीवर्ड को याद रखिए. एम्पावर्ड होने चाहिए, जहां पर लोग एम्पावर्ड हों, इंक्लूसिव हो, एवरीवन गेट्स द अपॉर्चुनिटी,
इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी ऑफ ऑल टाइप्स, सभी तरह की टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, एवरीथिंग, ठीक है। नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए, दैट मीन्स फोकस ऑन द सर्विसेज सेक्टर एंड फोकस ऑन द एजुकेशन एंड स्किल्स, ठीक है। नॉलेज बेस्ड का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन और स्किल पे हम लोग फोकस करेंगे। एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेफिनेटली दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज दैट विल जनरेट द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो वहां से हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट आएगा जहां से कि हमारा फर्दर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ड होगा, ठीक है। सो एम्पावर्ड, इंक्लूसिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, नॉलेज बेस्ड और रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर, ठीक है। देखिए आप जो है हमेशा सोचते रहिए बजट, क्योंकि सिलेबस का डायरेक्टली कोई पार्ट नहीं है, कहीं सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, तो हमेशा सोचते रहिए कि इसको यूज कहां पे करेंगे। अगर आप यहां पर 5 मिनट भी स्पेंड कर रहे हो ना बजट के सामने, तो बी वेरी ग्रीडी, सेल्फिश बनिए कि ये डाटा को कहां पे यूज करेंगे हम, वरना तो हमारे किसी काम का नहीं है ये ना, ये फिर तो हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि चलो ठीक है क्लास हो रही है तो अटेंड कर लेते हैं। ये हम लोग कहां पे यूज करेंगे ये हमें सोचना है, ठीक है। तभी फायदा है इस क्लास को अटेंड करने का। एक एक स्लाइड के बारे में आपको लिंक करना है और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। हमें एग्जाम ओरिएंटेड होना है, अल्टीमेटली हमारा पर्पस यहां पर एग्जाम क्वालिफाई करने का है, नॉलेजेबल बनने का नहीं है। नॉलेज उतनी चाहिए कि जितने कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकें, और जो नॉलेज है उसको अच्छे से यूज करना है बस, ठीक है। तो हमेशा सोचते रहिए कि कहां पर यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर, सिग्निफिकेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, तो यू कैन स्टार्ट मेंशनिंग दैट इंटरिम बजट 24 मेंशन्ड द in the vision for Amritkal the inclusive economy is very important component। यहां पर पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रेफरेंस देना है कि इंटरिम बजट में बोला गया है कि इंक्लूसिव इकोनॉमी जो है वो हमारे अमृतकाल विजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इस तरह से यूज करना है, टेक्निक आनी चाहिए यूज करने की। उसी तरह से क्वेश्चन आता है किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर, पेपर जीएस 3 में आपका किसी भी टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आता है, साइंस इंडेक्स से क्वेश्चन तो आएंगे ना, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे, तो इसको जरूर मेंशन कीजिए। इंटरिम बजट में हमने बोला है कि हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी का विजन है हमारा अमृतकाल का, ठीक है। तो ये आप लिंक करना स्टार्ट कीजिए, ओके। सारी बाउंड्री खत्म कर दीजिए, ये मत सोचिए कि क्लास इकोनॉमी की हो रही है, जहां पे यूज कर सकते हैं जीएस2 में यूज कीजिए इसको, इंक्लूसिव इकोनॉमी। एम्पावर्ड को यूज कीजिए जीएस1 में, सोशल जस्टिस में, जीएस2 में पॉलिटी में यूज कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हमें बियॉन्ड इकोनॉमी जाकर के सोचनी है, क्योंकि बजट जो है उन्होंने ये नहीं बोला कि इकोनॉमी के स्टूडेंट के लिए बजट है, ये तो सभी के लिए बजट है। सोशल, टेक्नोलॉजी, एवरी एरिया इन्होंने सब चीजें टच की है यहां पे, ठीक है। नॉलेज बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है सर्विस सेक्टर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्किल के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप इसको जरूर मेंशन करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, एनपीए के ऊपर क्वेश्चन आता है, स्टॉक मार्केट के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका, किसी भी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, सेविंग के ऊपर क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, गिफ्ट सिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, और बताइए पूरे सिलेबस के जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर के टॉपिक है किसी में भी क्वेश्चन आ जाए, लिंक कर दीजिए इसको। बहुत ब्रॉड वर्ड है तो वैल्यू एडिशन के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यही वैल्यू एडिशन है, हमारे सामने गोल्ड है, हमें बस इसको यूज करना आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि एक तो जब हम पढ़ेंगे उसी समय से हमें सोचना शुरू करना है। ऐसा नहीं होगा कि सर अभी तो पढ़ लेते हैं बाद में देखेंगे कहां पे यूज कर सकते हैं, बात कभी होगी नहीं। मैं बता रहा हूं अभी आप इसको पढ़ भी रहे हो बैठ के अच्छे से, वापस से उठा के रिवाइज करना भी बड़ा चैलेंज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिलेबस इतना बड़ा है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि अभी पढ़ लेते हैं फिर नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे फिर सोचेंगे कहां पे यूज करेंगे इसको, तो वो समय कभी आने वाला नहीं है, इस जीवन काल में नहीं आने वाला। वो मुझसे लिख के ले लो अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हो, या अगर आपको बजट ही प्रिपेयर करना है पूरे से तो फिर कर सकते हो लाइफ में कुछ और नहीं करना तो तब तो कर सकते हो, बट बाकी आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। तो बस क्लास में हो अभी से सोचो, यही आपकी फाइनल क्लास है सब कुछ, तो भाई यहीं से ही पिक करके लेके जाना है हमें। और ये चीजें लिखते रहो, जो मैं बोलता हूं ना यहाँ पे सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, बट क्लास के बाद डिसअपियर, सत्संग खत्म बाबा गए प्रसाद बटा और सब अपने घर, वो नहीं होना चाहिए। बाबा का ज्ञान नहीं है ये यूपीएससी क्लास है, तो प्लीज कीप राइटिंग जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, इसको लिंकिंग को
अपने हाथ से लिखते रहिए, अदरवाइज रूम में जाओगे, बैठोगे, सब डिसअपियर हो जाएगा, दो चार चीज याद आएंगे, फिर बोलेंगे हाँ ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वो कभी देखोगे नहीं। प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूं मैं? अभी आप लोग यहाँ पे क्लास में आए हो, बहुत बड़ी बात है ना, इतने सारे स्टूडेंट है हमारे पास, आप लोग आए हो उसमें से, तो आप पहले ही जैम हो, अब यहाँ पे आए हो तो थोड़ी और मेहनत कर लो, लिख के देख लो थोड़ा सा, मतलब लिखते रहो, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो बेसिकली अब जो मेजर फोकस एरियाज है उस पर हम बात करते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए मेजर एरिया, ओके। अगेन यूज कहां पे करना है वो सोचते रहिए, एनवायरमेंट के चैप्टर में हमें यूज करेंगे इसको, GS3 का कोई भी क्वेश्चन आएगा वहां पे इसको यूज करेंगे हम लोग, एनर्जी सेक्टर में इसको यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं ग्रीन एनर्जी नेट जीरो बाय 2070, so from the energy sector we want the net zero emissions, okay. So for that purpose some of the initiatives are viability gap funding for offshore wind energy potential for the initial capacity of 1 gigawatt, okay. So basically what is the meaning of viability gap funding? Viability gap funding is basically, suppose there is a private sector project, so suppose there is a private sector project and they need suppose 1000 CR, but they can arrange say 600 CR, so there is a gap of 400 CR, okay. So this will be filled by गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। कि अब यहां पे ये जो हमने बोला कि सर ये गैप है, तो गैप का मतलब यहां पर है कि इस प्रोजेक्ट को प्रॉफिटेबल बनाने में गैप है ये, यानी कि इसकी जो बेसिकली कॉस्ट है 1000 करोड़ है, और लेकिन जो यहां से हमें बेनिफिट आने वाले हैं वो 600 करोड़ आने वाले हैं, तो ये 400 करोड़ जो है ये गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से इसको देगी। अब ये दो तरह से हो सकता है, लोन की तरह से या ग्रांट की तरह से, ठीक है। या तो इसको गवर्नमेंट लोन की तरह से दे सकती है या तो ग्रांट की तरह से दे सकती है, दैट विल डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट फर्दर डिटेल्स कि वो किस तरह से इसको देना चाहती है, ठीक है। फॉर द ऑफशोर विंड एनर्जी, सो बेसिकली जो आपकी विंड एनर्जी होती है, ऑफशोर का मतलब होता है ऑन द सी, राइट। तो बेसिकली हम जो है ओशन के बीच में बड़े बड़े विंड टावर्स को लोकेट करते हैं, बड़े बड़े विंड टावर्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी ऑफशोर विंड एनर्जी है, आगे अगर हम अभी बात करें तो अभी हमारा इसमें इंडिया का कोई अभी इसमें वो नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, अभी इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रमोट करना चाहते हैं। और इसका जो बेनिफिट होता है दैट इट इज वेरी स्टेबल सोर्स, बिकॉज जो हमारा सी एरिया होता है वहां पर परमानेंट विंड्स चलती रहती हैं, तो इट इज ए स्टेबल सोर्स ऑफ विंड एनर्जी। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1000 मेगावाट, ठीक है। और 1 मेगावाट इज इक्वल टू क्या, सॉरी 1000 किलोवाट। जैसे हम लोग घर का कनेक्शन देखते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कभी चेक कीजिएगा घर का कनेक्शन कितना है, 4 किलोवाट, 6 किलोवाट, तो वो वाले किलोवाट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम लोग किलोवाट कहते हैं, और 1000 किलोवाट को 1 मेगावाट कहते हैं, और 1000 मेगावाट को 1 गीगावाट कहते हैं, ठीक है। तो जिस बेसिकली इनिशियल कैपेसिटी 1 गीगावाट तक हम इसको वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन। तो कोल गैसिफिकेशन में वी आर बेसिकली कन्वर्टिंग द कोल इनटू syngas. In the liquefaction, we are converting
the coal into liquid fuel. So these are very advanced technologies. We are trying to work upon them, right? Next is phased mandatory blending of compressed biogas. So biogas को हम लोग blend करना चाहते हैं with the compressed natural gas, that is CNG, जिसको हम लोग vehicles में use करते हैं, and piped natural gas, that is a PNG, that we use for the domestic consumption purposes, right? So basically use of the more biogas, okay? And financial assistance for procurement of biomass aggregation machinery, okay? So basically biomass, it is at the especially municipal level. तो म्यूनिसिपल लेवल्स पर अगर हमें बड़ी बड़ी क्वांटिटी में बायोमास को इकट्ठा करना है और उसको हमें फर्दर यूज करना है बायो एनर्जी क्रिएट करने के लिए, सो फॉर दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस, ओके? सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दीज कीवर्ड्स: ऑफशोर विंड एनर्जी, कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन, द कोल बायोगैस ब्लेंडिंग एंड द बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी, ठीक है? कोशिश कीजिए अपनी तरफ से, ये मत सोचिए कि याद आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं, बोल देंगे पहले भी याद किया था, याद नहीं हुआ था सर, याद ही नहीं आया, अब करके क्या करेंगे? नहीं करना, सोचना है ऐसे, सोचते रहिए। आप चीज़ों को अलग अलग जगह पे इंटरलिंक करना स्टार्ट कर देंगे। बट अभी ये मत सोचिए कि याद कैसे आएगा, अभी हमारा काम है याद करने का। 4 पॉइंट भी याद नहीं हो रहे तो कम से कम 2 तो याद हो ही जाएंगे। टारगेट जो है बहुत बड़ा मत बनाइए कि हमें 4 याद करने हैं, कोशिश कीजिए कि हमें सिर्फ 2 याद करने हैं। अगर 2 की कोशिश करोगे तो 4 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, क्योंकि माइंड की हमारी एक वो होती है, पैटर्न होता है कि वो कुछ छोड़ना नहीं चाहता। मतलब अगर आपने 2 पॉइंट कभी इसको ट्राई करना, इस टेक्नोलॉजी को, मेमोरी की टेक्नोलॉजी को, अगर 4 पॉइंट दे हुए हो तो आप उसमें से 2 ही पढ़ने की कोशिश करना, पढ़ ही नहीं पाओगे, 4 पढ़ डालोगे, क्योंकि 2 तो आप पढ़ोगे और 2 आपका माइंड इनसिक्योरिटी में पढ़ लेगा, यार ये 2 पॉइंट क्या थे, इनको ये छूट ना जाए, और वो एकदम पक्का याद हो जाएंगे। जो ये था ना माइंड में छूट ना जाएंगे, वो याद हो जाएंगे। और ये जो आप पहले वाले पढ़ रहे थे, शायद ये याद होना हो, उसकी गारंटी नहीं है। कुछ मेमोरी ट्रिक्स हैं ये वाली, कभी ट्राई कीजिएगा। तो बेसिकली अगर आपके सामने 10 पॉइंट रखे हैं किसी भी टॉपिक के, तो ये टारगेट मत रखिए कि 10 के 10 याद करने हैं, टारगेट 5 पॉइंट्स। तो 5 याद करने की कोशिश करेंगे, 7 हो जाएंगे, और 10 करेंगे तब भी 7 रहेंगे, ये सुनो, और बर्डन और क्रिएट होगा। 10 पॉइंट याद करने हैं, 5 का तो बर्डन कम हो जाएगा और 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा याद हो जाएंगे। और पॉइंट को ग्रुप कीजिए, ग्रुपिंग, सिमिलर पॉइंट को साथ में याद कीजिए, राइट? तो जैसे कि यहां पर आपके सिमिलर पॉइंट कौन से हैं, देखिए दोनों के अंदर बायो है, बायो, तो ये आपके एक ग्रुपिंग बन गया, ठीक है? ये तो ग्रुपिंग नहीं बन सकता, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। नेक्स्ट इज रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली द पर्पस इज टू प्रोवाइड 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ टू द हाउस होल्ड्स। नाउ बेसिकली व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस स्कीम? Government has data that average household consumption except in the metro cities. Metro cities में तो कंजम्पशन ज्यादा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे दिल्ली वगैरह में तो ज्यादा होता है, लेकिन दिल्ली के बाहर जो हमारे एरियाज हैं वहां पर आपका 100 यूनिट्स पर मंथ होता है एवरेज, ओके? और हमने यहां पर कोशिश की है कि हम लोग सोलार रूफटॉप ये लगवाएंगे हम लोग। इसके लिए सब्सिडी देते हैं ऑलरेडी हम लोग, उस सब्सिडी को हम कंटिन्यू करेंगे। और इसके लिए हमारा टारगेट है कि एवरी हाउस होल्ड जो है 300 यूनिट्स पर मंथ क्रिएट करे। अब ये जो हमारा 200 यूनिट्स का सरप्लस होगा, this will be feeded back, okay, with the help of concept of net metering। एक कॉन्सेप्ट होता है नेट मीटरिंग का। नेट मीटरिंग से क्या होता है कि आपका जो कनेक्शन है वो ग्रिड से कनेक्ट है। सपोज ये ग्रिड है, ग्रिड का मतलब बेसिकली जो कि पावर कंपनी की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, ठीक है, ये लाइन है उनकी, और ये आपका कनेक्शन है, ये आपका घर है।
अब यहां से आप सप्लाई कुछ ले रहे हो, यू आर टेकिंग सम सप्लाई, आप कुछ सप्लाई यहां से ले रहे हो, ठीक है। तो जो आपने सप्लाई ली वो आपकी बिलिंग होगी, और हो सकता है कि आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट हो जाए रूफटॉप सोलराइजेशन से, तो आप इसको सप्लाई बैक कर दो, इसको आप फीडबैक कर दो, ठीक है। आप इसको यूज कर रहे हो, सपोज कुछ टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि सोलर एनर्जी आपकी जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस समय आप यूज कर रहे हो, आपका जो कनेक्शन है वो ग्रिड से कनेक्टेड है, सप्लाई जो है आपकी पावर कंपनी से आ रही है, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ जब आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन रही है, ओके। तो सपोज आपने यूनिट यूज की 20 यूनिट्स इन ए ईयर, और आपने सप्लाई बैक की 200 यूनिट्स, तो बेसिकली अल्टीमेटली आपको कितना बेनिफिट हुआ, 180 यूनिट्स आपने कंट्रीब्यूट की, जिससे कि आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, एक सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा, और सेकेंडली आपका डिसेंट्रलाइज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी होगा, और इसके अलावा आपका सोलार एनर्जी का रोल बढ़ेगा, जो कि हमारा टारगेट है नेट जीरो एमिशन बाय 2047, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली यहां पर पर्पस है। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां पर नेट मीटरिंग लगेगा। तो नेट मीटर क्या है कि वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने यूज की और उसमें से जितनी हमने फीडबैक कर दी उसको एडजस्ट करके वो बता देगा कि नेट जो है हमने कंट्रीब्यूट किया है ग्रिड को, या हमने ग्रिड से नेट यूज किया है। तो इसको कहते हैं नेट मीटरिंग। तो मीटर जो हमारा लगता है इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर, वो स्पेशल काइंड का मीटर होगा, जिसमें जो कंज्यूमशन हो रहा है वो भी और जो हम लोग फीडबैक कर रहे हैं वो भी दोनों ही काउंट होंगे, और फाइनली नेट अमाउंट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है नेट मीटरिंग का। तो हियर दे विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट मीटरिंग। अब इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं, सोचिए, ये कॉन्सेप्ट को हम कहां पे यूज कर सकते हैं सिलेबस में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो तो लिखा ही हुआ है, उसका आगे बताओ। इंक्लूसिव ग्रोथ, वेरी गुड। ग्रीन एनर्जी, वेरी गुड। डिसेंट्रलाइज ग्रोथ, डिसेंट्रलाइजेशन भी तो हो रहा है यहां पे। पॉवर्टी रिमूवल स्कीम, इनइक्वालिटी रिडक्शन, ओके। तो मल्टीपल जगह पे इसको हम यूज कर सकते हैं, राइट, मल्टीपल जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ई व्हीकल्स। तो ई व्हीकल्स को वी आर प्रमोटिंग, और ई व्हीकल्स में हम लोग बेसिकली वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पे हम फोकस कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ ई व्हीकल खरीद के लाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। उसकी जब हम बैटरी रिप्लेस करेंगे तो बैटरी हमारी एक अफोर्डेबल आनी चाहिए। तो अभी हमारे सामने दो चैलेंज है, एक तो बैटरी कॉस्टली है। तो आज अगर हम कार खरीद के लाते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल और उसकी बैटरी रिप्लेस करने जाते हैं तो हमें एक्चुअली कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है। जो हमारी सेविंग होती है इलेक्ट्रिक ईवी यूज़ करने की वजह से, वो हमारी सारी वाइप ऑफ हो जाती है, क्योंकि हमारी जो बैटरी की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो बैटरी की कॉस्ट हमारी धीरे धीरे कम हमारी करने की कोशिश है थ्रू द वेरियस इनिशिएटिव्स। तो बेसिकली एक तो हमें बैटरी की कॉस्ट कम करनी है, और सेकेंडली हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। सपोज हमारी कैपेसिटी है, हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो रनिंग कैपेसिटी है एक वन चार्ज में 300 किलोमीटर्स है, वो मैक्सिमम होती है। एक्चुअल में तो 300 से कम ही होती है, 250 200 तक होती है। तो अगर हम लोग लॉन्ग ट्रेवल करना चाहते हैं तो तभी कर सकते हैं जब हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आज के समय में अगर हम देखें मिडिल क्लास, तो नॉर्मली एक ही कार होती है, मल्टीपल कार तो होती नहीं है। तो जिनके पास मल्टीपल कार है वो तो यूज कर सकते हैं कि भाई चलो पास के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूर के लिए बड़ी गाड़ी, दूसरी गाड़ी। लेकिन जिनके पास एक ही कार है, उनको अगर जाना पड़ गया दूर, और हम लोग बड़े इमोशनल हैं, जाएंगे तो अपनी गाड़ी से जाएंगे, टैक्सी भी नहीं करेंगे। तो क्योंकि हमें दिखाना है, स्टेटस सिंबल है कि हमारे पास गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है, इसी दिन के तो खरीदी थी, सो जाएंगे अपनी गाड़ी से ही, टैक्सी से जाएंगे नहीं। तो अगर दूर जाना है तो हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं खरीद पाएंगे। ये प्रैक्टिकल चैलेंज है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग, और स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी हम लोग बैटरी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और अदरवाइज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, ओके। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ ई बसेस फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दैट वी आर डूइंग, दिस इज वेरी वेरी गुड, राइट, थ्रू द पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। पेमेंट सिक्योरिटी मतलब हम लोग जो म्यूनिसिपल बॉडीज या जैसे कि
जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ई बसेस को यूज़ करना चाहती हैं, उसको हम लोग बजट के थ्रू पेमेंट सिक्योरिटी हम एक तरह से उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट गारंटी देगी कि भाई अगर इन्होंने बस यूज़ की है, खरीदी है, तो इनको हम लोग जो है फ्यूचर में रीपे करने की गारंटी लेते हैं हम लोग। ठीक है, apart from that there is one more scheme, the new scheme for bio manufacturing and bio foundry would be launched. This will provide environment friendly alternatives such as biodegradable polymers. तो बेसिकली हम लोग अभी जो है बायो प्लास्टिक्स, बायो फार्मा, बायो एग्रो इनपुट्स, बेसिकली अब हम बायो टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं इन वेरियस एस्पेक्ट। ओके, so this thing you will deal directly in the biotechnology कि exactly concept होते क्या है। ठीक है, but the point is कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के अलावा सोलराइजेशन पे काम कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ग्रीन एनर्जी वैसे, एंड देन वी आर वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के हमारे कितने इनिशिएटिव्स हो गए यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव नाउ इट इज। बायोटेक्नोलॉजी की बहुत इंपॉर्टेंस है, और यूपीएससी में देखें तो जीएस3 में बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी पूछा भी जाता है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज द फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी। अगर कोई क्वेश्चन आता है बायोटेक्नोलॉजी पे तो आप यहां से जरूर रेफरेंस दीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव्स, फर्स्ट इज वी आर बेसिकली प्रमोटिंग द इन्वेस्टमेंट। देखिए बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, द प्रॉब्लम और द फैक्चुअल एस्पेक्ट हैज बीन दैट सब्सिडीज हैव ऑलवेज बीन मोर देन द इन्वेस्टमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो सब्सिडीज हमारी 2/3 रही हैं, यानी कि अगर हम 100 रुपीज स्पेंड करते हैं तो 2/3 उसमें सब्सिडी में चले जाता है, और इन्वेस्टमेंट 1/3 रहा है, यानी कि 100 रुपीज स्पेंड करते हैं तो 1/3 अमाउंट जो है हमारा इन्वेस्टमेंट में जाता है। ठीक है, so subsidies are always higher than investment. Now subsidies are revenue expenditure, investment is capital expenditure. जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मल्टीप्लायर इंपैक्ट होता है उसका 2.5 टाइम्स, और जो सब्सिडी होता है वो करंट की नीड को सेटिस्फाई करता है, इनइक्वालिटी को कम कर सकता है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, सो इट क्रिएट्स ए विशियस साइकिल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, vicious cycle of low productivity of land and the poor income of the farmers. Okay, so if we have to reverse this, then we have to focus on the investment of private and public both. Private means PPP and public means basically the government infrastructure. Okay, so we have to focus on the investment and especially on the post harvest, because post harvest की जरूरत क्या है, because there is high wastage in the storage, in the transportation। तो वेस्टेज बहुत ज्यादा है, हमारी प्रोडक्शन तो हो गया, बट बिकॉज ऑफ द पुअर कनेक्टिविटी एंड पुअर स्टोरेज फैसिलिटी, हमारे पास कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अगर है भी तो बात बहुत ज्यादा कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है। तो उससे क्या होता है कि वी हैव टू, द फार्मर्स हैव टू डिपेंड ऑन द मिडलमैन, दे टेक अवे ऑल द गेन्स। तो मिडलमैन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही मिनिमम रेट पे आपसे गुड्स को खरीदते हैं, स्पेशली जो पैरिशेबल आइटम्स होती हैं, क्योंकि उनको आप होल्ड कर नहीं सकते, तुरंत सेल करना पड़ेगा, आज सेल नहीं करोगे कल वो खत्म है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर पेमेंट, दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर प्राइसिंग, सो वी हैव टू फोकस ऑन द पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मीन्स वी आर एग्रीगेटिंग द इनपुट्स, राइट। हम लोग एग्रीगेट कर रहे हैं बेसिकली जो भी हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट हुआ, ठीक है, जो भी हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट हुआ, मॉडर्न स्टोरेज, एफिशिएंट सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर क्या क्या आएगा, सप्लाई चेन में आपका रोड्स, रेलवेज, एयर रूट्स, कोल्ड वैन्स, सब आएगा इसके अंदर। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, सो दिस इज बेसिकली फूड प्रोसेसिंग, हमें फूड प्रोसेसिंग को भी प्रमोट करना है। फूड प्रोसेसिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्राइमरी प्रोसेसिंग। क्या होता है, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग, ग्रेडिंग। सपोज हम लोगों ने मैंगो हमें प्रोसेस करने हैं, तो हम लोग बल्क में मैंगो लेके आ गए,
मैंगो को हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी को छोटे बड़े अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी को, अच्छे और खराब मैंगो को, ठीक है। तो सॉर्टिंग कर रहे हैं उनको हम लोग, कुछ बेसिक क्लीनिंग कर रहे हैं, उसकी वॉशिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग क्या होता है? व्हेन वी कन्वर्ट दैट मैंगो इनटू मैंगो जूस, मैंगो पिकल, मैंगो जैम, और क्या क्या होता है मैंगो के, बहुत सारी चीजें बनती हैं। हाँ, आम पापड़, मुंह में पानी आ गया। सो मैंगो की तो कम से कम हमारे यहाँ पे 50 चीजें बनती होंगी, 10 तरह के तो अचार बनते होंगे मैंगो के। अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग, कोई मीठा अचार है, कहीं खट्टा अचार है, कहीं नमकीन अचार है, कहीं कुछ अचार है। तो मैंगो को हम लोग इस तरह से सेकेंडरी प्रोसेसिंग में इसको यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो पैकेजिंग होती है वो बहुत जरूरी है। मार्केटिंग जो है ये बहुत जरूरी है, पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्केटिंग करना है इसको हमें। मार्केटिंग के लिए वी हैव टू डेवलप द लोकल मार्केट्स, ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट्स, राइट, एंड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग is very important. For example, in India, we focused on one district, one product. Huh? तो हम लोग जो है ये सब चीजों पे फोकस करना चाहते हैं, राइट। मत्स्य संपदा, मत्स्य स्टैंड्स फॉर फिशरी, संपदा स्टैंड्स फॉर रिसोर्स, संपदा मतलब रिसोर्स, ओके। सो वी हैव प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सो दिस विल बी फर्दर अपग्रेडेड एंड हियर वी विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी प्रोडक्टिविटी पे। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवरऑल हमारा फोकस कहां पे होना चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम लोग पहले तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, और सेकेंडली हम लोग उसको, जो हमारा आउटपुट हो उसको प्रॉपरली हम लोग एग्रीगेट करें, उसको हम लोग प्रॉपरली स्टोर कर सकें, सप्लाई चेन से प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप। आप सिर्फ 2 वर्ड में बता सकते हो कि हमें ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बढ़ाना है, ओके। एग्जैक्ट सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर एवरी एरिया, चाहे आप हॉर्टिकल्चर ले लो, चाहे आप फिशरीज ले लो, चाहे आप डेयरी ले लो, सब जगह हमारा सेम चैलेंज है, सब जगह हमें सेम काम करना है, प्रोडक्टिविटी एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ये 2 वर्ड आप हमेशा याद रखो, ठीक है। कम शब्दों में बड़ी बात कहना सीखो, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट मत गिनवाओ, सिर्फ मेजर पॉइंट गिनवाओ, फिर उस प्रोडक्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए फर्दर उसकी डिटेल में जाओ। अब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए फिर पार्टिकुलर सेक्टर में जाओ, वहां पर हमें इनपुट पे कैसे फोकस करना है, इनपुट को कैसे बेटर करना है, कॉस्ट कैसे कम करनी है इनपुट की, इनपुट को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, टेक्नोलॉजी कैसे इंटीग्रेट करनी है, कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है, कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करना है। तो कुछ मेजर थीम्स को लेके चलो, मेजर आइडियाज को लेके चलो। ये मत सोचो कि अलग चीजों के लिए आपको अलग अलग कोई चीज कंटेंट कहीं से मिलेगा, कहीं पे भी कंटेंट देखो कि डायमेंशन सेम ही रहेंगे, है ना। अल्टीमेटली आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होने चाहिए, थिंकिंग पैटर्न डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी एरिया में कुछ भी सजेशन दे सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव टू increase the aquaculture productivity existing 3 to 5 tons per hectare, and we have to double the exports to 1 lakh crore and generate 55 lakh employment opportunities. ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप एक ट्रेंड याद कर लो। हाँ, ये याद कर सकते हो कि ठीक है 3 to 5 टन पर हेक्टेयर, लेकिन ये भी भूल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भूलोगे नहीं, वैसे अब मैंने बोल दिया ना आपको, भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब भूलोगे भी नहीं आप। 3 to 5 हेक्टेयर भूल पाओगे क्या? 3 to 5 हेक्टेयर मैं इतनी बार क्लास में बोल दूंगा ना कि आप भूल ही नहीं पाओगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सोचते हैं कि डेटा याद कैसे करेंगे, वो टेंशन हो जाती है, हम याद करना भूल जाते हैं, उस टेंशन में मर जाते हैं। डेटा इतना सारा बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में, करंट अफेयर्स में, उसको सोचो, उसको पढ़ो और उसको लिंक करो चीजों से, उसको इंटीग्रेट करते हुए चलो। जो आपने अब से पहले पढ़ा है उससे लिंक करते हुए चलो, तो उससे क्या होगा, पहले वाली चीजें भी आपकी इंटीग्रेट होती रहेंगी, वो भी आपकी टिप्स पे आती रहेंगी, और आज वाली चीज भी लिंक हो जाएगी। अल्टीमेटली मिला जुला के बहुत छोटी सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ बल्क में चीजें नहीं है, ठीक है। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स विल बी सेटअप, तो ये हम लोग कुछ आर्टिफिशियल एक्वा पार्क सेटअप करेंगे
जहां पर हम लोग फिशरीज को बेसिकली प्रमोट करेंगे। ओके, आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। ऑयल सीड्स पे हमारा स्पेशल फोकस है बिकॉज इट इज हाईली इंपोर्टेड आइटम। हम लोग ऑयल सीड्स इंपोर्ट के लिए भी डिपेंडेंट है, ये भी हमारा इंपोर्ट का एक मेजर आइटम है एग्रीकल्चर के अंदर। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं दैट वी डू द रिसर्च ऑन द हाई यील्डिंग वेराइटीज, अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, वैल्यू एडिशन एंड क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, तो यहां से हमारे कुछ पॉइंटर्स मिल गए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है किसी भी क्रॉप की, तो हमें हाई यील्डिंग वेराइटी पर रिसर्च करनी है, मॉडर्न टेक्निक यूज करनी है, वैल्यू एडिशन यूज करना है और क्रॉप इंश्योरेंस यूज करना है। 4 पॉइंट मिल गए आपको यहीं से। बजट कुछ भी नहीं है, रिवीजन है आपकी इकोनॉमी का। अभी हम इकोनॉमिक रिव्यू पे आएंगे, वो तो आप बोलोगे सर सब कुछ आता है, पढ़ा क्यों रहे हो आप में? पूरा प्लानिंग चैप्टर उसमें रिवाइज हो जाएगा हमारा एक। तो उसके आगे जो है उसमें आप देखोगे सर सब तो पता ही है हमें, आप पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा इसलिए रहे हैं कि आपके मन में ये ना रहे कि हमने पढ़ा नहीं है। रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर सपोर्टिंग डेयरी फार्मर्स टू बी फॉर्मुलेटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। देखिए, आप देखिए फोकस कहां पे है? प्रोडक्टिविटी पे। भाई पूरी आप ये देखिए स्लाइड के अंदर वो फोकस कहां पे कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी या पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ नैनो डीएपी। तो ये आपका नैनो फर्टिलाइजर्स है, टू बी एक्सपेंडेड इन ऑल एग्रीकल्चरल क्लाइमेट जोन्स। अब नैनो फर्टिलाइजर का भी प्रोडक्ट पर्पस क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, राइट? तो नैनो डीएपी, नैनो फर्टिलाइजर हम लोग उसको यूज करेंगे और इसका पर्पस भी हमारा है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके, तो प्रोडक्टिविटी के लिए हमने यहां पे क्या क्या इनिशिएटिव्स देखे? नैनो डीएपी देखा, डेयरी में हमने देखा, और इसके अलावा हमने ऑयल सीड्स में देखा। ओके, और हमने यहां पर फिशरीज के लिए भी देखा। ओके, और पोस्ट हार्वेस्ट हमने कहां कहां पे देखा? पोस्ट हार्वेस्ट हम लोगों ने ओवरऑल देखा। ठीक है, ओवरऑल सेक्टर के लिए हमने देखा। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें तो हमने मत्स्य संपदा के अंदर भी पोस्ट हार्वेस्ट देखा। ये देखिए एक्सपोर्ट क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया हमारा ये। ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट हार्वेस्ट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, सो this is again very important area. This year there is high focus on the infrastructure. सारे डॉक्यूमेंट के, चाहे वो बजट हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिव्यू हो, चाहे वो आपका वाइट पेपर हो, हर जगह गवर्नमेंट इसको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हमने केपेक्स किया है, केपेक्स किया है, केपेक्स किया है। आपके लिए क्या इंप्लीकेशन है इसका? कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को एकदम समझ के जाना, सारी चीजों को अच्छे से करके, और कैपिटल अकाउंट को भी करके अच्छे से जाना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल वर्ड जहां पे दिखे आपके बल्ब जल जाने चाहिए। कैपिटल वर्ड को हम अच्छे से याद करना है, आपको अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, करके आना है। और मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी वन क्वेश्चन ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो टोटल केपेक्स आउटले इंक्रीज बाय 11.1%। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, इस पर और डेटा हमारा आएगा। रेलवेज पे वी आर फोकसिंग ऑन 3 मेजर इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स। Okay, identified under PM Gati Shakti. PM Gati Shakti is again very important initiative. This PM Gati Shakti is for basically multimodal connectivity. और इनका काम क्या है बेसिकली? PM गति शक्ति का जो बेसिकली एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, we have to efficiently execute them through integrated approach. So by bringing all the ministries, by collaborating and integrating ministries. तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उनका जो मैनेजमेंट होता है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के हाथ में होता है। सो फॉर एग्जांपल एक हाईवे निकल रहा है, एक्सप्रेस वे, और उसके बीच में कोई रेलवे लाइन आ रही है। ठीक है,
अब ये एक्सप्रेसवे बनने के लिए रेलवे लाइन से क्लियरेंस जरूरी है, रेलवे मिनिस्टर से क्लियरेंस जरूरी है। अगर हमारे पास पीएम गति शक्ति ना हो तो बेसिकली क्या होगा, जो हाईवे मिनिस्ट्री होगी वो एक फाइल बना के भेजेगी रेलवे मिनिस्ट्री को, रेलवे मिनिस्ट्री अपना टाइम लेगी 6 महीने साल भर, ठीक है, तब तक जो हमारा हाईवे प्रोजेक्ट है वो बीच में अटका रहेगा। तो इस तरह से एक एक चीज़ों को लेकर के चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहती हैं और डिले होती रहती हैं। तो बीएम गति शक्ति में हमने बोला कि यहाँ पर कुछ ऑफिसर बैठेंगे हमारे, ये एक पोर्टल का यूज़ करेंगे और इस पोर्टल पे सारे प्रोजेक्ट को लिस्ट करेंगे और आपस में गवर्नमेंट को जो भी आपस में कोऑर्डिनेशन करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत है, आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो वो पीएम गति शक्ति में इसको कोऑर्डिनेट करेंगे और प्रोजेक्ट को एक फास्टली एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज वन ओनली, द मिनिस्ट्रीज आर ओनली कंपोनेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो मिनिस्ट्री शुड नॉट बिकम ए हर्डल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, सो 3 मेजर कॉरिडोर प्रोग्राम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पे हम फोकस करेंगे पीएम गति शक्ति में। तो पीएम गति शक्ति इज एग्जिस्टिंग स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक एग्जिस्टिंग स्कीम है जिसमें हम लोग फोकस करेंगे 3 कॉरिडोर में। एक कॉरिडोर हमारा होगा एनर्जी, मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर, ठीक है। सेकंड होगा हमारा पोर्ट कनेक्टिविटी और थर्ड होगा हमारा हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। ओके, 3 कॉरिडोर्स पे हम लोग फोकस कर रहे हैं इन द रेलवे, ओके, अंडर द पीएम गति शक्ति। एंड अगेन नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द वंदे भारत ऑल्सो। तो बेसिकली जो हमारी एग्जिस्टिंग बोगीज हैं उनको हम जो है वंदे भारत में कन्वर्ट करेंगे। वंदे भारत से क्या होता है, सेफ्टी बढ़ती है, कन्वीनियंस बढ़ता है, कंफर्ट बढ़ता है और किराया बढ़ता है, रेंट बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ता है रेलवे का। यस, तो बेसिकली ये देखिए मोदी जी कितने स्मार्ट हैं, हमारी गवर्नमेंट कितनी स्मार्ट है। हमारे जो एग्जिस्टिंग बोगी हैं उन्हीं को पेंट करके उनके चेयर बदल के वंदे भारत किया, 3 गुना किराया, हम लोग फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, वंदे भारत में बैठ रहे हैं। तो रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ रही है गवर्नमेंट की वंदे भारत से, है ना। उन्होंने देखा कि लोग वंदे भारत में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि आज हमें चाहिए स्टैंडर्ड। रेलवे में जाना लोगों को आजकल लगने लगा है थोड़ा मतलब स्टेटस डाउन होने वाला चीज़ लगने लगा है। उनको लगता है कि एयर से जाना मतलब स्टेटस मेंटेन करने वाली बात है। तो मोदी जी को बात समझ में आ गई, उन्होंने बोला कि देखो कोई भी स्टेटस मेंटेन करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। स्टेटस कहाँ से पता चलता है, एक तो चीज़ महंगी हो और दूसरा लोग उसको यूज़ करते हो, आपके आसपास वाले, थोड़ा कंफर्ट भी हो, मतलब दिखने में अच्छी हो। तो उन्होंने बोला कि हम लोग जो है ट्रेन को ही एरोप्लेन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वही है सब कुछ, लेकिन एक ब्रांडिंग की है उन्होंने। ब्रांडिंग अगर कोई करना चाहता है तो मोदी जी सीखे ब्रांडिंग कैसे करना है। मोदी जी का मतलब मेरी गवर्नमेंट से है, जो कि अच्छी चीज़ है, मैं इसको पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, कि हमारी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ रही है एक तो। सेकेंडली हम रेलवे का यूसेज कर रहे हैं। हम लोग रेलवे की जो कल्चर जो थोड़ा कम होती जा रही थी एविएशन की वजह से, और एविएशन में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, एक्चुअली उसमें कई गुना होता है। एक समय ऐसा था जहाँ पर एविएशन में कम खर्चा होता था, एक समय ऐसा आ गया था कि आपका राजधानी का टिकट ज़्यादा होता था और एयर टिकट कम होता था, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रही। और रेल का अपना अलग ही मज़ा होता है ट्रैवल करने का, वो मज़ा आपका एयर में नहीं आ सकता। रेल में कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा, जैसे बैठोगे वैसे उतरोगे, और एयर में बड़ा स्ट्रेसफुल होता है 2 घंटे बैठना भी बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। मतलब उस समय तो लगता है कि 2 घंटे में पहुंच गए, लेकिन वो जो कान बंद हो जाते हैं ना 2 दिन के लिए, मतलब बड़ा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो वो बस दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे तो अगर हमें दूर जाना है तो यूज़ करेंगे, लेकिन बात मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास चॉइस हो, ऑल्टरनेटिव हो, तो हम लोग इसको वंदे भारत को यूज़ कर सकते हैं। एविएशन सेक्टर, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स एंड comprehensive डेवलपमेंट ऑफ द न्यू एयरपोर्ट्स अंडर द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन उड़ान स्कीम में हमने क्या किया, नो फ्रिल्स एयरपोर्ट। नो फ्रिल्स का मतलब क्या है कि कोई फैसिलिटी वहां पर नहीं मिलेगी। नॉर्मली एयरपोर्ट का मतलब हमें लगता है कि जाएंगे वहां पर आधे घंटे बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, माहौल देखेंगे, फिर 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट आएगी, बड़ी सी कॉफ़ी लेंगे 300 रुपये वाली, उसमें फिर फोटो खींचेंगे डालेंगे। वहाँ पे वो सब फैसिलिटी नहीं है। वहाँ पर क्या है, जाइए टिकट दिखाइए और जाके बैठिए और उड़ जाइए। तो खर्चा कम, सरकार का, आपका भी खर्चा कम, ठीक है, आपकी भी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है
इन्होंने एक फेयर पे कैप लगाई हुई है, फेयर पे कैप लगाई हुई है 2500 रुपये घंटा, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने एक और चीज लगाई हुई है कि आप जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको इन्होंने हमने इंक्लूड किया हुआ है कि वो आपकी लैंड प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक 3 ईयर का एक लॉक इन पीरियड देते हैं। मतलब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि सब लोग ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक ऑपरेटर को ही हम देते हैं ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि जो ये एयरपोर्ट ने बहुत ही रिमोट एरिया में है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन में बिडिंग के थ्रू, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, एयर ऑपरेटर्स होते हैं। और वो जो ऑपरेटर्स होते हैं ये 3 साल के लिए उनको कम से कम मिलता है वो चीज़, रूट, यानी कि 3 साल में सिर्फ और सिर्फ वही रन कर सकते हैं। और फेयर पे कैप है, ऐसा नहीं कि वो कितना भी चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन 3 साल के लिए उनको क्यों दिया जाता है लॉक इन पीरियड, जिससे कि उनके लिए कमर्शियली वायबल हो, क्योंकि वैसे वहां पर लोगों की कल्चर नहीं है यूज करने की एयर को। तो क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग फ्लाई नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग अगर मल्टीपल ऑपरेटर डालेंगे तो क्या होगा, किसी को बेनिफिट नहीं होगा, कोई ऑपरेट नहीं करेगा, सारे एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एक ही ऑपरेटर रहे। हाँ, अपर सीलिंग रखेंगे, कैप, अपर कैप रखेंगे हम फेयर पे, जिससे कि मिसयूज ना हो, ठीक है, एक ऑपरेटर उसको मिसयूज ना करे, और एक ही ऑपरेटर 3 साल के लिए कम से कम उसको ऑपरेट करेगा। तो ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे उड़ान स्कीम में है। उसके अलावा हम लोग बाद में इसको इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में भी इसको कन्वर्ट किया, उड़ान 2.0 एंड उड़ान 3.0, ठीक है। तो अब हम लोग जो है जो पड़ोसी कंट्रीज है वहां पर भी हम ये वाली फ्लाइट्स को भेज रहे हैं, ठीक है। मेट्रो एंड नमो भारत, तो मेट्रो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव। नमो भारत बेसिकली रीजनल रैपिड मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। तो बेसिकली अभी जो फर्स्ट है आपका दिल्ली से मेरठ के लिए चला है, ये चल रही है अभी फेस्ट बैनर में, और आगे आने वाले टाइम में ये आपके पूरे NCR को कवर करने वाली है। सो ये आपका मेजर प्रोजेक्ट होने वाला है गवर्नमेंट का। मेट्रो रेल आपका लोकल ट्रेवल के लिए होता है, और जो आपका नमो भारत है ये आपका रीजनल ट्रेवल के लिए होता है। रीजनल ट्रेवल का मतलब कि आपको सपोज 100 किलोमीटर में ट्रेवल करना है, 50 किलोमीटर में ट्रेवल करना है, तो फास्टर, मॉडर्न, कन्वीनियंट, ठीक है, लेकिन किराया बहुत महंगा है, 3 रुपीज पर किलोमीटर लगा लो, 3 रुपीज पर किलोमीटर मिनिमम। तो ये चीजें हैं, अब देखिए कैसे काम करेंगी चीजें। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अब आते हैं हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ पे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में बेसिकली वी आर सिलेक्टिंग सम 150 to 200 डिस्ट्रिक्ट्स। हम लोगों ने 150 to 200 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए हैं बेस्ड अपॉन वेरियस पैरामीटर्स, ठीक है, बेस्ड अपॉन उनकी बैकवर्डनेस, स्पेशली जो बैकवर्ड है इन एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बेस्ड अपॉन वेरियस पैरामीटर्स 150 to 200 डिस्ट्रिक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, और फिर हम उनको सपोर्ट करते हैं, उन पे हम स्पेशल फोकस करते हैं। दैट इज द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम टू असिस्ट द स्टेट्स इन फास्टर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एंड थीम्स क्या है यहाँ पर, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीजें याद कर लीजिए, 6 थीम्स है। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। 6 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पर हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चूज करते हैं, ठीक है। इसको एकदम याद कर लीजिए। याद करने का तरीका क्या होगा, सिमिलर पॉइंट को ग्रुपिंग कीजिए। तो यहां पर सिमिलर पॉइंट कौन कौन से हैं बताइए, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल, ये तीनों एक हो गया आपका, सिमिलर हो गए। और एग्रीकल्चर एंड वाटर, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको आपने एक ग्रुप में कर लिया। बेसिकली यहां से हमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट का फोकस किस किस एरिया पर है, ठीक है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन कौन सी स्कीम का नाम लिखोगे आप। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम पढ़ ली इंक्लूसिव ग्रोथ पे, जितना भी हमने चारों पढ़ी थी ना, वो पुअर, फार्मर, यूथ, वुमेन, सब इंक्लूसिव ग्रोथ का, और ये भी इंक्लूसिव ग्रोथ का है। तो ये बेसिकली वो तो सेक्शंस ऑफ पीपल पे था, वो तो सोशल सेक्शन पे हमने फोकस किया था, ये हमने रीजन पे फोकस किया है। ये रीजनल डेवलपमेंट का पार्ट है। इंक्लूसिव ग्रोथ में भी 2 चीजें फोकस होती हैं, एक हमारा होता है पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी,
कि किन लोगों पे हम फोकस करने वाले हैं, और दूसरा हमारा होता है कि किन एरियाज पे फोकस करने वाले हैं, रीजन्स पे हम कितने फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमने बात की पुअर, फार्मर, यूथ एंड वुमेन, वो हमारे हो गए पीपल, सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो वो 4 चीजें हम बताएंगे, उनकी संबंधित स्कीम्स हम बताएंगे, और अगर हम बताएंगे कि एरिया डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, रीजनल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी 2 मेजर इनिशिएटिव्स हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जहां पर हम लोग जो बैकवर्ड पॉकेट्स हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम वहां पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड हम फोकस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट पे और ईस्ट पे बेसिकली। ठीक है, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्टर्न रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन हम लोग यहां पे फोकस कर रहे हैं। राइट, यहां से आपका थिंकिंग डेवलप होना चाहिए कि गवर्नमेंट का फोकस कहां कहां पर है। ठीक है, हाउसिंग पे हम फोकस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, close to achieving the target of 3 crore houses, additional 2 crore we are targeting for the next few years. Now housing for the middle class scheme, तो ये नई स्कीम है जो कि हम लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं, टू बी लॉन्च्ड, अभी लॉन्च नहीं हुई है, तो हमें उम्मीद है कि जो आने वाला बजट है नेक्स्ट गवर्नमेंट का, उसमें ये लॉन्च होगी, टू प्रमोट द मिडिल क्लास टू बाय द हाउसेस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, तो मिडिल क्लास के लिए स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे हाउसिंग फॉर द मिडिल क्लास, और इस स्कीम में हम लोग जो है प्रोबेबली नेक्स्ट बजट में इसको हम लेके आएंगे। ठीक है, हेल्थ के अंदर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पे हमारा फोकस है फॉर द गर्ल्स 9 to 14, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 फॉर द न्यूट्रिशन, बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रिशन के लिए है, न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, यूविन प्लेटफॉर्म फॉर द इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन पे हमारा काफी फोकस है, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर, मिशन इंद्रधनुष एंड दिस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, ये दोनों हमारा इम्यूनाइजेशन के लिए हो गया। देन हेल्थ कवर अंडर द आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत में क्या हमारा फोकस है, अप टू 5 लाख सेकेंडरी एंड टर्शरी health care both in public and private hospitals. हाँ जी, तो अब हम इसको एक्सटेंड करने वाले हैं आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारी कवरेज अभी बढ़ने वाली है, जो आयुष्मान भारत की कवरेज है वो हम बढ़ाने वाले हैं आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए। ठीक है, देन सेटिंग अप न्यू मेडिकल कॉलेजेस, मोर मेडिकल कॉलेजेस बाय यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द वेरियस डिपार्टमेंट्स। देखिए, गवर्नमेंट के एक यहाँ पर स्पेशल जो एक आपको फीचर मिलेगा कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना है, जो भी हमारे पास चीजें हैं आज के समय में हमें उसको यूज करना है ना, तो एग्जिस्टिंग चीजों को यूज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया मेडिकल कॉलेज में हम कहाँ से बनाएंगे, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के पास हमारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। होता क्या है कि हमारे पास डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, जैसे कि एक इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास बहुत लैंड होती है। ठीक है, उसी तरह से रेलवे के पास बहुत लैंड होती है। अब हमें चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए, तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बेसिकली ट्रांसफर करवा सकती है, खरीद सकती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के लिए। तो हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है सरकार के पास में, हमें उसको राइट पर्पस के लिए यूज करना है बस। ठीक है, A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. ठीक है, तो बेसिकली खर्चा नहीं बढ़ाना है, फोकस ये करना है कि खर्चा में कम से कम बढ़े और हमारे इनिशिएटिव्स ज्यादा से ज्यादा आए। ये हमारा एक तरीका भी है सोचने का, आंसर राइटिंग का भी। आंसर राइटिंग जब आप करेंगे तो हमेशा सोचिए कि खर्चा बढ़ाए बिना हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए उड़ान स्कीम में भी क्या किया, एग्जिस्टिंग जो हमारे बेस थे, जो हमारे एयर बेस थे या जो पुराने एयरपोर्ट बंद हो गए थे, हमने उन्हीं को चालू कर दिया। या कुछ हवाई पट्टी बनी हुई थी जहाँ पे नेताजी लोग आते थे कभी कभी, हमने उनको चालू कर दिया, उनको बना दिया उड़ान एयरपोर्ट। वंदे भारत में क्या किया, एग्जिस्टिंग बोगी को कन्वर्ट कर दिया। हॉस्पिटल में हम क्या कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को हम कनेक्ट कर रहे हैं। चाय नहीं पिलाओगे आज,
ठीक है. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. ठीक है. आप बोलोगे सर खुद चाय पीते रहते हो, हमें ब्रेक देते नहीं हो. अभी आधे घंटे में क्लास खत्म हो ही जाएगी. यूपीएससी स्टूडेंट आर साधक. साधक समझते हो? आपका काम सिर्फ साधना करना है. साधना मतलब यूपीएससी सिलेबस की साधना, पूजा, प्रेयर, यही आपकी जीवन है. खाना पीना तो चलता रहेगा पूरी जिंदगी. कम खाओ ज्यादा पढ़ो, ये फंडा होना चाहिए लाइफ का. एक्चुअली मतलब एक वर्ड होता है एंड्योरेंस. अगर लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना है तो एंड्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड्योरेंस क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे एंड्योरेंस का तो उसका मतलब होता है द एबिलिटी टू कीप मूविंग despite pain and difficult situation and for a long period of time and without complaining. समझ में आया? तो एंड्योरेंस जो है जितना जल्दी अडॉप्ट कर लो आपकी लाइफ उतनी आसान बन जाएगी. तो एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? रियली बता रहा हूं मैं, यूपीएससी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है. एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी to keep moving in difficult and painful situation for a long period without complaining. तो इसको नेगेटिवली नहीं लेना है. देखो लाइफ में अगर आप किसी को भी देखोगे जिसने भी लाइफ में कुछ वर्थवाइल अचीव किया है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसरो में भी चंद्रयान 3 उड़ाया. आप किसी को भी देखोगे, क्या आपको लगता है कि उन्होंने बस ऑफिस टाइम में आकर के काम करके उन्होंने चंद्रयान 3 उड़ा दिया होगा? एंड्योरेंस. फेल हुए हैं वो कई बार. आप फ्रीडम फाइटर्स को देखो, भगत सिंह, गांधी जी, कोई भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जो भी हमारे लेस नॉन फ्रीडम फाइटर्स थे, क्या उन्होंने एंड्योरेंस नहीं था उनके पास? आज आप देखो एथलीट्स, कोई भी जो एथलीट होता है, जो अच्छा प्लेयर होता है, क्या वो एंड्योरेंस नहीं होता है? क्या उसको पेन नहीं होता है? क्या वो डिफिकल्टी फेस नहीं करता? क्या वो साइलेंस में मेहनत नहीं करता? तो एंड्योरेंस इज वन इंपॉर्टेंट फीचर. एंड्योरेंस से ही आपकी कैपेसिटी डेवलप होती है. एंड्योरेंस से ही आपको नेक्स्ट लेवल अचीव होता है, आपकी फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है. तो ये जो फीचर होता है, ये होता है फीचर उन लोगों का जो लोग लाइफ में कुछ वर्थवाइल अचीव करना चाहते हैं. अदरवाइज तो प्लेजर फन कब तक एंजॉय करोगे? प्लेजर फन कितने देर चलेगा? आज 14 फरवरी है, एक दिन कर लोगे, चलो डेली थोड़ी 14 फरवरी हो जाएगी. तो प्लेजर फन ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप एक लिमिट तक कर सकते हो, अनलिमिटेड नहीं कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. टूरिज्म. देखो टूरिज्म आ गया, राइट टाइम पे आया. हाँ, द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग G20 मीटिंग इन 60 प्लेसेस प्रेजेंटेड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया टू ग्लोबल ऑडियंस. इन्होंने क्या किया? G20 की 60 मीटिंग्स इन्होंने ऑर्गेनाइज की, सारे सिटी घुमा दिए इंडिया के, 60 सिटी. वहां पे 200-200 लोगों को लेके जाते थे. तो अब क्या हुआ कि उससे ब्रांड इंडिया डेवलप हुआ. कहीं उदयपुर में हो रहा है, कभी ऋषिकेश में हो रहा है, कभी श्रीनगर में हो रहा है. मतलब पूरा इंडिया घुमा दिया, पूरी लोकेशन उन्होंने विजिट करा दी. तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारी कल्चरल हेरिटेज हमारी बेसिकली प्रमोट हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है. क्योंकि जो हमारे G20 के अंदर लीडर्स थे, दे वर ऑल वर्ल्ड लीडर्स. तो G20 सिर्फ एक समिट जो हमारी दिल्ली में हुई थी उसकी बात नहीं कर रहे हम लोग, वो तो सिर्फ एक मीटिंग थी, वो तो क्लाइमैक्स था. लेकिन उससे पहले हम लोगों ने 60 प्लेसेस पर मीटिंग की रेगुलरली, जिससे कि हमारी डाइवर्सिटी हमने दिखाई. तो दैट विल प्रमोट द टूरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है. देन वी आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स फॉर बिजनेस एंड कॉन्फ्रेंस टूरिज्म. बिजनेस पर्पस के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए वो इंडिया में आए. मतलब कि सपोज उनको कॉन्फ्रेंस करना है कोई, तो आए और उदयपुर में कॉन्फ्रेंस करें. दिन में कॉन्फ्रेंस करो, रात को घूमो. हाँ, सिटी पैलेस, जयपुर में कॉन्फ्रेंस करो, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वहां पे कॉन्फ्रेंस करो. तो एक कल्चर की बात है. जैसे हम लोग एस्पायर करते हैं कि हम स्विट्जरलैंड जाएं, यूरोप जाएं, तो लोग भी एस्पायर करें
कि वो लोग इंडिया में आए, वो इंडिया में आने के लिए तरसे, वो हमें करना पड़ेगा। सब ब्रांडिंग की बात है, ठीक है, ब्रांडिंग की बात है। आवर मिडिल क्लास ऑल्सो हैज नाउ एस्पायर्स टू ट्रेवल एंड एक्सप्लोर। तो बेसिकली जब से ये हमारा सेल्फी, रील्स और हमारे ट्रेवल ब्लॉग्स, स्टेटस, तो हम लोग कई बार दूसरों को दिखाने के लिए जाते हैं, या इसलिए जाते हैं कि हम प्रेशर में आ जाते हैं कि यार ये बड़े घूम रहे हैं, हम नहीं कहीं जा ही नहीं पा रहे, हम भी चलते हैं, चलो। तो कहीं ना कहीं ये अभी एक ट्रेंड बन रहा है, मतलब मिडिल क्लास की इनकम भी बढ़ रही है और आपके ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी हो रहा है। आपको कहीं घूमने जाना है तो तत्काल में टिकट बुक करा लो, एयरपोर्ट कभी पहुंच जाओ, तुरंत टिकट मिल जाएगी आपको, थोड़ा महंगा मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपके हॉस्पिटल्स, सॉरी हॉस्पिटल्स नहीं, होटल्स होटल्स और ट्रैवल और फैसिलिटीज, ठीक है, वो सब हमारे बढ़ रही हैं, ठीक है। टूरिज्म इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म, ये भी हमारा बढ़ रहा है। इज प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल टूरिज्म। जो हमारा टूरिज्म है, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट सेक्टर, क्योंकि एक टूरिज्म होने से, अब देखिए सिंपल एग्जांपल, अभी अयोध्या में आपका राम मंदिर बना, ठीक है, लेट्स लुक इट फ्रॉम द टूरिज्म पर्सपेक्टिव। वहां पर अब हमारा वर्ल्ड क्लास का वहां पर टूरिस्ट आ रहा है, और अब देखिए वहां पर डेवलपमेंट क्या सिर्फ और सिर्फ मंदिर का होगा, डेवलपमेंट तो एरिया का होगा, लोगों का होगा। जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनको जॉब मिलेंगी, वहां के यूथ को जॉब मिलेंगी। अब वहां के लोगों को इंडिया आने की जरूरत, यहाँ पे दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, उल्टा दिल्ली के लोग वहां पे जाके होटल खोल रहे हैं अपने, वो टूरिस्ट गाइड बनेंगे, वो वहां पर होटल चलाएंगे, अपने रेस्टोरेंट चलाएंगे, वहां की जो आइटम्स होंगी, लोकल आइटम्स, वो पूरे इंडिया में सेल होंगी, वो बेसिकली ब्रांडिंग क्रिएट होगी उस एरिया की। तो टूरिज्म इज वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। अगर हम बात करें थ्री इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, तो पहला आपका है एग्रीकल्चर, वहां पर सबसे ज्यादा है। सेकंड आपका है द रियल एस्टेट, रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा है आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होता है, रियल एस्टेट में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बहुत ज्यादा होता है। और थर्ड आपका अगर देखो बैकवर्ड लिंकेज फॉरवर्ड में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टूरिज्म। टूरिज्म के अंदर भी अगर एक टूरिस्ट जाता है तो वो कम से भी कम कुछ नहीं तो 10 से 20 हजार तो खर्च करेगा। तो वो सारा किसके पास जा रहा है पैसा? वो सरकार के पास जा रहा है, वो टूरिज्म यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास जा रहा है, रेलवे के पास जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे रोड टैक्स में जा रहा है, वो टोल चार्ज में जा रहा है वो। तो बेसिकली सरकार को पैसा मिल रहा है और लोगों को पैसा मिल रहा है, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है। तो टूरिज्म हमारा अभी इस समय बहुत ज्यादा फोकस्ड एरिया है। अगर हम बात करें रीजनल डेवलपमेंट की भी, तो रीजनल डेवलपमेंट में हमने बात की एस्पिरेशनल प्रोग्राम की, हमने बात करी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की। और अगर हम बोलें कि टूरिज्म भी हमारा एक मेजर फोकस है, वो भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फोकस है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लिए, कि जो हमारे लेस प्रमोटेड एरियाज हैं हम उनको प्रमोट करना चाहते हैं। अब वो किसी भी नाम से हो, वो स्पिरिचुअल नाम से हो रहा है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टूरिज्म प्रमोट होना चाहिए। हमें इसको सेक्युलर पर्सपेक्टिव से देखना है कि लोग किसी भी तरह से अपनी जेब से पैसा निकालें, बस वो बाहर ना जाए, इंडिया के बाहर ना जाए, इंडिया के अंदर ही पैसा खर्च कर दे, ये हमारा फोकस होना चाहिए। तो इसके लिए प्रपोजल क्या है? स्टेट्स विल बी एनकरेज टू अंडरटेक डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स to attract business and promote the opportunities for the local entrepreneurship. A framework for rating of the center based on the quality of facilities and services will be established. तो एक तो हमारे टूरिस्ट सेंटर्स हमारे बनेंगे टू अट्रैक्ट बिजनेस एंड प्रमोट अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरा हम लोग जो है रेटिंग करेंगे सेंटर्स की क्वालिटी ऑफ फैसिलिटी के ऊपर और सर्विसेज की क्वालिटी के बेसिस पे। एंड द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स for the financing of such development on matching basis. Matching का बेसिस मतलब हो गया, मैचिंग बेसिस बेसिकली मीन्स कि अगर स्टेट गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है तो 1000 करोड़ रुपीस हम उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे लॉन्ग टर्म के लिए। मतलब बराबर पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके लोन देंगे। मैचिंग का मतलब ये होता है। Projects for the port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on the islands including the Lakshadweep. देखो नाम आ गया लक्षद्वीप का।
तो गवर्नमेंट का फोकस है नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द टैक्सेशन। टैक्सेशन में हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया इज बेस्ड अपॉन द प्रोग्रेसिव सिस्टम। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा स्लैब बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ इनकम टैक्स बढ़ेगा। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो हमारा बेस्ड है प्रोपोर्शनल सिस्टम पे, लेकिन जिसका इंपैक्ट हमारा रिग्रेसिव होता है कुछ एरियाज में, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैव मोर देन ट्रिपल्ड, यानी कि 3 टाइम्स हो गए हैं। तो इट इज ए वेरी गुड डेवलपमेंट। नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न फाइलर? इनकम टैक्स रिटर्न। रिडक्शन इन एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ द रिटर्न बिकॉज ऑफ आईटी। प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है? बेसिकली जो हमारा सिस्टम है इनकम टैक्स का, वो है हमारा बेस्ड अपॉन द सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जो है खुद उसको कैलकुलेट करके सरकार को बताते हैं कि ये हमारी इनकम है। उसके बाद सरकार उसको, यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसको रैंडमली चेक करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं अपने सोर्सेज से, अपने सॉफ्टवेयर से, और 3 to 5% को वो आपको डिटेल में चेक करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं उसकी, ठीक है। बाकी 95% को वो ऐसे ही जो है प्रोसेस करके और अप्रूव कर देते हैं। तो ये प्रोसेसिंग टाइम होता है। इससे क्या होता है कि अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी और नई क्रिएट होती है तो वो भी आपको बताई जा सकती है। आपका कोई रिफंड जनरेट होता है तो रिफंड भी आपको दिया जा सकता है। एवरेज मंथली ग्रोस जीएसटी कलेक्शंस हैव डबल टू 1.66 लाख। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर आर इंक्रीजिंग, इससे हमारा टैक्स बेस बढ़ रहा है। रिडक्शन इन एवरेज प्रोसेसिंग टाइम, इससे हमारा क्या हो रहा है? टैक्स कन्वीनियंस इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ना। इंक्रीज इन टैक्स बायोएंसी। व्हाट इज टैक्स बायोएंसी? चेंज इन टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ चेंज इन द जीडीपी। तो अगर जीडीपी में इंक्रीजमेंट हो रहा है, अगर जीडीपी 1 टाइम बढ़ा तो हमारा टैक्स कितने टाइम बढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा टैक्स बायोएंसी होता है। और स्टेट्स के अंदर ये अभी हमारा हो गया है 1.22। इट इज गुड और बैड? गुड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर जीडीपी बढ़ा हमारा 1 टाइम तो टैक्स हमारा इंक्रीज हुआ है 1.22 टाइम्स। तो दिस इंडिकेट्स द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, क्योंकि यहां पे हमने पोस्ट जीएसटी के बाद की हम बात करें तो हमारा ये इंक्रीज हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? लेकिन भाई टैक्स रेवेन्यू क्यों बढ़ेगा? 2 कारणों से बढ़ सकता है। या तो टैक्स रेट बढ़ जाए, या तो टैक्स बेस बढ़ जाए। टैक्स रेट का मतलब हो गया कि हाँ, बेसिकली टैक्स रेट या तो बढ़ जाए, यानी कि जो लोग पहले कम रेट ऑफ टैक्स में आ रहे थे उनको ज्यादा रेट ऑफ टैक्स देना पड़े। एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि टैक्स नंबर ऑफ पीपल हु आर पेइंग द टैक्स इज नाउ इंक्रीजिंग। तो बेसिकली ये सेकंड फैक्टर है, ये काफी हुआ है। क्यों हुआ है ये? क्योंकि फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जो चोरी है वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट सप्लाई चेन। तो अगर आपको अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपको बिल लेना पड़ेगा, और बिल अगर आप लोगे तो पूरी चेन आपकी फॉर्मलाइज हो जाएगी, क्योंकि वो पीछे तक बिल मांगते चले जाएंगे लोग आपस में। उससे क्या होगा कि पूरा सिस्टम फॉर्मलाइज हो गया, यानी किसी भी पॉइंट पे टैक्स की चोरी हो ही नहीं सकती। दूसरा क्या हुआ है? डिजिटलाइजेशन हुआ है। सारे ट्रांजेक्शन्स अब ऑनलाइन होने लगे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी, पेमेंट भी ऑनलाइन होने लगी है। उससे क्या हुआ? अगेन कैश इकोनॉमी नहीं है तो टैक्स की चोरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग टैक्स बायोएंसी। क्यों बढ़ रहा है हमें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इज increasing formalization and digitalization, increasing formalization and digitalization, due to GST
इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, positive sentiment about GST. 94% industry leaders है basically, view transition to GST as largely positive. 80% of the respondents feel GST has led to supply chain optimization. Supply chain optimization जो मैंने आपको बताया इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम की वजह से, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आपने जीएसटी इनवॉइस लिया है पीछे से, ठीक है। सेकेंडली हमारा ई वे बिल, ई वे बिल क्या होता है, 50,000 से अगर ऊपर का हमारा ट्रांजैक्शन है और 10 किलोमीटर से ज़्यादा हमारी डिस्टेंस कवर होनी है तो हम लोग जो है उसके लिए एक ट्रांजैक्शन के लिए एक डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं ई वे बिल। इससे क्या होता है कि अगेन टैक्स की चोरी कम होती है और दूसरा फायदा इसमें होता है कि हमारा ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है। ट्रांजिट टाइम कम हो जाता है क्योंकि पहले क्या होता था कि उसको मैन्युअली चेक करते थे कि ये ठीक है कि नहीं है। अभी क्या होगा कि अगर आपने ई वे बिल जनरेट किया हुआ है, आप दिखा दो कि हमारा ई वे बिल नंबर है, वो चेक करेंगे, खट से आपको जाने के लिए बोल देंगे। तो बॉर्डर पे जो चेकिंग का टाइम होता है वो कम हो गया। उससे क्या हुआ, हमारा लॉजिस्टिक खर्चा कम हो गया, लॉजिस्टिक चार्ज हमारे कम हो गए। एक बेनिफिट ये भी हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम हो गई, ये बिग बेनिफिट हुआ है हमारा, ठीक है। डिक्लाइन इन इंपोर्ट रिलीज टाइम सिंस 2019। तो इंपोर्ट रिलीज टाइम, इंपोर्ट रिलीज करने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पोर्ट्स पे या जो हमारे एयरपोर्ट्स पे जो भी इंपोर्टेड आइटम्स हमारी आती हैं, हम उनको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करते हैं, उनको टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको लीगल इलीगल इंपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको प्रॉपर वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वो जो वेरिफिकेशन सिस्टम है उसमें टाइम लगता है, तो वो जो टाइम है वो हमारा कम हुआ है। तो इससे हमारा फायदा क्या होगा, हमारा इंपोर्ट एफिशिएंट बनेगा, जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी कम होगी, ठीक है। तो 47% एट इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट। आईसीडी क्या होता है, बेसिकली जो हमारे इंपोर्ट के टाइम पे कुछ प्लेसेस होते हैं जहां पर हम इंपोर्टेड गुड्स को स्टोर करते हैं रिलीज से पहले, वो हमारा आईसीडी होता है, ठीक है। 28% एट एयर कार्गो एंड 27% एट सी पोर्ट। तो एयर हो, सी हो या आईसीडी हो, तीनों जगह पे हमारा इंपोर्ट रिलीज टाइम कम हुआ है, ठीक है। टैक्स प्रपोजल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। First of all, we have continued various tax benefits that we had given to the startups and investment made by sovereign wealth funds and tech pension funds. तो हम लोगों ने काफी सारे incentives दिए थे sovereign wealth fund को। sovereign wealth fund क्या होता है, basically funds of the government, जो गवर्नमेंट फंड होते हैं, जैसे कि इंडिया में क्या है NIIF, उसी तरह से सऊदी अरेबिया का है, सिंगापुर का है, जापान का है। तो ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उन सबके पास में अपना सॉवरेन वेल्थ फंड है और वो लोग आकर के दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने इनकम टैक्स में कुछ स्पेशल रिबेट्स दी थी 2020 के बाद, ठीक है। तो इनकम टैक्स में हमने उनको रिलैक्सेशन दी थी। तो ये जो टैक्स एग्जम्पशन है ये हम लोगों ने एक्सटेंड कर दी है अप टू 31 मार्च 2025, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। देन विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड। बेसिकली अगर 2010 से पहले की डिमांड 25,000 है या 11 से 15 की आपकी 10,000 की डिमांड है, तो ये आपकी क्या कर दी, विड्रॉ कर ली डिमांड। क्यों विड्रॉ कर ली ये डिमांड, क्योंकि ये जो आपकी डिमांड है छोटी छोटी डिमांड है, इन सबको प्रोसेस करने में सरकार का बहुत समय निकल जाता है और इससे क्या होता है कि छोटे चोर को पकड़ने के चक्कर में बड़ा चोर छूट जाता है।
अटेंशन डाइवर्ट होती है, डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं कोर्ट्स के अंदर, बैकलॉग ऑफ द केसेस इंक्रीज इन द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के अंदर आप देखो सबसे बड़ा जो हमारा डिस्प्यूट एजेंसी है वो कौन है, जो हमारे सबसे बड़ा लिटिगेटर है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर भी सबसे बड़ा लिटिगेटर कौन है, टैक्स डिपार्टमेंट। तो सारे केसेस जो है आपके गवर्नमेंट के अंदर भी सबसे सारे केसेस होते हैं वो टैक्स के केसेस होते हैं, क्योंकि और कहां पे लड़ेगी सरकार आपसे, टैक्स के मुद्दे पे लड़ेगी, और तो कहां पे आपका पंगा हो रहा है गवर्नमेंट से, है ना। तो टैक्सेशन के आपके मैक्सिमम केसेस होते हैं, और ये जो हमारे केसेस होते हैं अब देखो 25,000 तक, अगर 2010 से लेकर अभी तक सोल्व नहीं हुआ, यानी कि आपने टैक्स पेयर को कोई डिमांड रेज की और डिमांड वो टैक्स पेयर लेके आगे डॉक्यूमेंट की देखो नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे था, फिर आप उस पर नोटिस भेज रहे हो, फिर वो आ रहा है, मतलब आप भी काम में लगे वो भी काम में लगा हुआ है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो बड़े चोर थे वो निकल के भाग जा रहे हैं, करोड़ों रुपए वाले। तो हम लोगों ने बोला कि इनको छोड़ो यार इनसे तो वैसे भी कुछ नहीं आना, या आएगा भी तो इससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाएगा, अब बड़ों को पकड़ो, ठीक है। तो इसको हमने बोला विड्रॉल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड, और इससे क्या होगा, हमारा टैक्स कन्वीनियंस बढ़ेगा। ठीक है। रिटेंशन ऑफ सेम टैक्स रेट फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स रेट हमारे सेम रहे हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को थोड़ा सा इस पर आप देखिए, अच्छे से इसको देखिए, पहले आप देखेंगे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चार्ट पे से क्वेश्चन बन सकता है एज इट इज। ओके, ऑनलाइन की कुछ क्वेरीज। जी, तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर मैं आपसे पूछूं, इफ आई पुट ए क्वेश्चन टू यू, द टैक्स टू जीडीपी रेशियो in the last 5 years is steadily increasing, answer is yes or no। मेरा क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये क्या है आपका, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये जो हमारा है ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि हमारा जीडीपी के एज ए परसेंटेज कितना टैक्स हम लोग इकट्ठा कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, 10%, 10.6%, 11%, 11.2, 11%, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है इसमें कि लास्ट 5 इयर्स में ये स्टेडली इंक्रीज हो रहा है, स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, रॉन्ग। आप देखिए 5 साल की बात करें, अभी 24 में हम हैं, तो 1 2 3 4 5 यहां पे इंक्रीज हुआ, लेकिन यहां पे डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेडली इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर सेम चीज में लास्ट 10 इयर्स के बोलूं तो आंसर विल रिमेन सेम। तो ऐसी स्टेटमेंट आपके प्रीवियस क्वेश्चन में दिखेंगी, और मैं जब मैं पढ़ाता हूं अपने बैच में तो मैं कहता हूं कि ये इकोनॉमिक सर्वे में आपको डाटा मिलेगा, और डाटा भी आपको मिलेगा हमेशा आंसर रॉन्ग ही मिलेगा आपको, क्योंकि 10 साल तक लगातार बढ़ता रहे, क्या संभव है ऐसा? हम 10 दिन नहीं लगातार पढ़ सकते लगातार? क्या 10 दिन हम बराबर ही नहीं पढ़ सकते? स्टेडली इंक्रीज की तो बात अलग होगी। तो सरकार 10 साल तक, 10 साल तो बहुत ज्यादा होते हैं इकोनॉमी के अंदर, 10 साल में तो हम लोग कितने बड़े बड़े क्राइसिस झेल के आ चुके होते हैं। तो 10 इयर्स इज अ वेरी बिग पीरियड। तो 10 साल के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है कि स्टेडली इंक्रीज हो रहा है या स्टेडली डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर मोस्टली आपका नो ही होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो मान के चलिए कि नो ही होगा, ठीक है। हाँ जी, बट यहां पे क्वेश्चन क्या है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, एब्सोल्यूट अमाउंट की बात नहीं की हमने, ठीक है। एब्सोल्यूट अमाउंट आपसे कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, क्योंकि वो हमें याद भी नहीं करना, हमें तो परसेंटेज ही देखना है हमेशा, ठीक है। डेटा भी वही दिया हुआ है। सेकेंडली, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसका रेशियो ज्यादा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो इसको ऑब्जर्व कीजिए। अगर हम रेशियो की बात करेंगे, 5% किसका है, ये आपका ग्रीन,
इनडायरेक्ट टैक्स का 6.6। डिफरेंस कितना है? 1.6। इससे पहले डिफरेंस कितना? 1.1, 1%, 0.5%, 0.6%, 0.5%। तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि ये कहीं ना कहीं जो गैप है वो इंक्रीज हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इनडायरेक्ट टैक्स इज इन द लोअर side, but the gap between the direct and indirect tax is increasing. Is it good or bad? Good, क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स है डायरेक्ट। अगर हम इसको इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना कि भाई हमारे टैक्स के अंदर इनडायरेक्ट का प्रोपोर्शन कम हो रहा है और डायरेक्ट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं, यानी कि जो रिच लोग हैं उनसे ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसको जरूर आप लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो ये फ्लक्चुएट कर रहा है लास्ट 5 और 10 साल में, ये भी लिख लीजिए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज फ्लक्चुएटिंग लास्ट 5 to 10 years। Next, the proportion of direct taxes is higher in the tax to GDP ratio. The proportion of direct taxes is higher in the tax to GDP ratio as compared to indirect taxes. As compared to indirect taxes. Full stop. The gap between direct and indirect taxes is rising. The gap between direct and indirect taxes is rising in the recent few years. In the recent few years. ठीक है जी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, रूपी गोस टू, यानी कि पैसा हमारा जा कहां रहा है। सॉरी, वैसे ये जो आपका मिस्टेक है यहां पर, रूपी कम्स है यहां पे, रूपी कम्स फ्रॉम, ये यहां पर मिस्टेक है। कि सोर्सेस क्या है हमारी, और यहां पर हमारा टोटल, हम रिसीट की बात कर रहे हैं, टोटल रिसीट, चाहे वो रेवेन्यू हो कैपिटल हो। बेसिकली अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो हमें रिसीट्स हो रही है वो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी से हो रही हैं। इसको भी हम देखेंगे, इसको हम कह सकते हैं इट इज बेसिकली, कौन सा डेफिसिट होता है ये हमारा? फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट इज पार्ट ऑफ द फिस्कल डेफिसिट ओनली। ठीक है, तो ये हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया। तो सबसे बड़ा प्रोपोर्शन हमारा है बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज का। इसको भी हम देखेंगे कि इसके क्या क्या कंपोनेंट से, कहां कहां से पैसा आ रहा है। ठीक है, और टैक्स की बात हम करें तो डायरेक्ट टैक्स में हमारा पैसा कहां कहां से आ रहा है? इनकम टैक्स से और कॉरपोरेशन टैक्स से। इनकम टैक्स से हमारा 19% है, ये लिखते रहिए आप, क्योंकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो टोटल हमारा हो गया 36%, डायरेक्ट टैक्स हमारा हो गया 36% ऑफ द टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट की हम बात कर रहे हैं यहां पे, रेवेन्यू, कैपिटल, ऑल द रिसीट्स, जो हमारा बजट होता है रिसीट साइड वाला, सारी रिसीट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो यहां पर कौन कौन से टैक्सेस इनडायरेक्ट है?
जीएसटी है 18%, कस्टम्स है, यूनियन एक्साइज है। सर ये एक्साइज तो खत्म हो गया था, फिर यहां पे कहां से आ गया? जीएसटी में मर्ज नहीं हो गया था ये? अभी भी कुछ आइटम्स पर हमारा अभी एक्साइज ड्यूटी लगता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहल आइटम्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है। तो जीएसटी 18, कस्टम्स 4% एंड एक्साइज 5%। टोटल कितना हो गया? 27%, है ना। तो 36% ऑफ टोटल रिसीट इज डायरेक्ट टैक्सेस, 27% इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैसे भी हमें पता ही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके इनडायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट से कम है, ठीक है। और अगर हम ओवरऑल देखें कि भाई सबसे ज्यादा पैसा आया हमारा बोरोइंग से, सेकंड हाईएस्ट हमारा आया इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स मींस पर्सनल इनकम टैक्स हियर, डू नॉट इंक्लूड द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, क्योंकि कॉर्पोरेट आपका आ गया यहां पर, ठीक है। और थर्ड हाईएस्ट आपका आया जीएसटी से, ठीक है। बस ये टॉप 3 रखिएगा, टॉप 3 सोर्स हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट हमारा मेजर सोर्स है बोरोइंग्स, सेकंड हमारा है इनकम टैक्स और थर्ड हमारा है जीएसटी। टॉप 3 सोर्सेज ऑफ रिसीट्स, ठीक है। करें चेंज? हाँ, नॉन डेट में, अच्छा आप वैसे कह रहे हो अगर इन दोनों कंबाइन करो। हाँ, वैसे अगर आप देखो डायरेक्ट टैक्सेस वो आपके बोरोइंग से ज्यादा हैं, लेकिन जो हमारी बजट के अंदर आइटम दी हुई, अगर हम बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से देखते हैं, मतलब इस ग्राफ से देखते हैं, तो फिर हमारा वैसे हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स को मिला दे तो एक ही टैक्स बन जाता है हमारा, क्योंकि हाँ नॉन डेट के हिसाब से भी बिल्कुल आप कह रहे हो वो भी सही है। नॉन डेट के हिसाब से भी आपका इनकम टैक्स ही ज्यादा है, बिल्कुल। नॉन टैक्स में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स है, यू आर राइट। अब पैसा जाता कहां पर है? तो सबसे ज्यादा पैसा देखिए कहां पे जा रहा है, या तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज में जा रहा है, जिसको हम कहते हैं डिवोल्यूशन एज पर द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में आपका एक और होता है जो कि ग्रांट्स वाला पार्ट होता है। फाइनेंस कमीशन के 4 हमारे होते हैं एजेंडा, जो 4 मेजर एजेंडा होते हैं। क्या क्या एजेंडा होते हैं? फर्स्ट इज डिवोल्यूशन ऑफ द शेयरेबल टैक्सेस, डिविजिबल पूल। सेकंड होता है हमारा कि जो ग्रांट्स हमें देनी है स्टेट्स को, और थर्ड हमारा होता है लोकल बॉडीज को प्रमोट करने के लिए जो हमें सजेशंस देने, और फोर्थ हमारा होता है एनी अदर मैटर, अगर काम नहीं होगा तो एनी अदर मैटर विच हैज टू बी गिवन टू यू, ठीक है। सो ये 4 चीजें हमें फाइनेंस कमीशन को देनी होती हैं, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बेसिस पर देनी होती हैं। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट आइटम आप देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमारी टोटल पेमेंट का जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितना है? 20%। यानी कि 100 रुपए अगर हमारे पास आते हैं तो 20 रुपए कहां जाते हैं? इंटरेस्ट। यानी कि अगर आप देखो तो हम रिसीट के अंदर हमने देखा था जीएसटी हमारा 18% है, यानी कि जीएसटी सारा का सारा हमारा इंटरेस्ट में जा रहा है ऑलमोस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा मेजर खर्चा है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सिडी हमारा कितना है? 6% है। डिफेंस हमारा 8% है, और पेंशंस 4% है, अदर एक्सपेंडिचर 9% है। एंड वी हैव 2 मेजर एक्सपेंसेस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सर ये क्या होती है? तो बेसिकली इसको लिख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। Basically, central sector schemes are those schemes which are framed and implemented by union government, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही फ्रेम करती है और इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। और यहां पर जो 100% आपकी फंडिंग होती है वो भी सेंटर से आती है,
मोस्टली दिस इज ऑन द मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट के मैटर्स होते हैं, और एग्जाम्पल है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए आप। प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम किसान योजना, यहां पर हम लोग डायरेक्ट सब्सिडी भेजते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दिस इज framed by central government and implemented by the state government. फंडिंग जो है आपकी, इट इज बोथ बाय द सेंटर एंड स्टेट। नॉर्मली 50-50 होती है वैसे तो, बट जो आपके बैकवर्ड या हिली स्टेट्स होते हैं वहां पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा होती है, ठीक है। और ये कोई भी मैटर पे हो सकती है, एनी मैटर पे हो सकती है। देखिए यहां पर भी जो मैंने लिखा मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट, ये जरूरी नहीं है, ये अदर मैटर्स पे भी हो सकती है, अदर्स कॉन्करेंट पे भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यूनियन लिस्ट वाले मैटर पे होती है, ठीक है। एनी, ये किसी भी मैटर पे हो सकती है। हाँ जी, नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल होता ही नहीं है। जैसे जनधन योजना है तो वो बैंक के थ्रू इंप्लीमेंट हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। पीएम किसान है तो वहां पे सीधा मोदी जी बटन दबाते हैं और किसान के खाते में पैसा जाता है, स्टेट का कोई रोल है ही नहीं इसमें, ठीक है। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में स्टेट का रोल आ जाता है, फंडिंग में भी, इंप्लीमेंटेशन में भी और मैटर्स में भी। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारी 3 तरह की होती है। प्लीज राइट 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, लिखिए फटाफट से। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स, फर्स्ट इज कोर ऑफ द कोर स्कीम। विच आर बेसिकली फ्लैगशिप स्कीम्स, जो कि फ्लैगशिप है, यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एमजी नरेगा। सेकेंड इज कोर स्कीम्स, और थर्ड इज ऑप्शनल स्कीम्स। तो कोर स्कीम्स जो है ये आपकी होगी, जो कोर ऑफ द कोर के अलावा जो आपकी अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ओके। और ऑप्शनल स्कीम्स बेसिकली विच आर इनिशिएटेड बाय सेंटर ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे हम स्टार्ट करते हैं, एंड इट इज वॉलेंट्री। ये स्टेट्स के लिए वॉलेंट्री है कि वो इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट अगर अडॉप्ट करेंगे तो उनको खर्चा भी तो करना पड़ेगा। तो ये हमारी स्टेट्स के लिए वॉलेंट्री है, ठीक है। सो इट इज वॉलेंट्री फॉर द स्टेट्स। एग्जाम्पल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन। मुखर्जी है सर ये। So central sponsored scheme and central schemes.
हो गया टाइम, बस 5 मिनट्स मोर। मेरी भी क्लास है 11 बजे से, मुझे पढ़ाना। हो गया। परफॉर्मेंस डिक्लाइनिंग सीएडी, इसको हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक रिव्यू में। आपको सिर्फ इतना करना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, ये हमारी अचीवमेंट है। अभी हमारा जो करंट ईयर में जो फर्स्ट हाफ के लिए था 1% ऑफ जीडीपी है करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट में आपके 2 पार्ट होते हैं, विजिबल और इनविजिबल। जीएनपीए ग्रोस एनपीए, ये हमारा डिक्लाइन हुआ है, 3.2% है। ठीक है, पहले 11.2 था फाइनेंशियल 18 में। डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एवरेज मंथली ग्रोस जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है, ये हमने देख ही लिया, इसको भी अमाउंट को याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बट हाँ, ये याद कर लीजिएगा, एनपीए वाला याद कर लीजिएगा अप्रोक्सीमेटली 3%, और सीएडी याद कर लीजिएगा अप्रोक्सीमेटली 1%। फॉलिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट उसमें इकोनॉमिक रिव्यू में डिटेल में जाएंगे। अब हम आते हैं अपने डेफिसिट्स के ऊपर। तो डेफिसिट्स में ये चार्ट आप जरूर इसको याद रखिएगा। यहां पर दिस इंडिकेट्स फिस्कल डेफिसिट। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि लास्ट 5 इयर्स में फिस्कल डेफिसिट इज स्टेडली डिक्रीजिंग, तो यस और नो? अभी हम 5 इयर्स यहां पर है, तो 1 2 3 4, आंसर इज नो। शायद नेक्स्ट ईयर हो जाए 5 साल, और 10 साल में तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ठीक है, ना तो स्टेडली डिक्रीजिंग है ना तो इंक्रीजिंग है, वो एकदम फ्लक्चुएट माना हो रहा है। ठीक है, और देन नेक्स्ट वी हैव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये हमारा सपोज करंट ईयर की बात करें, ये रिवाइज एस्टीमेट है, तो 2.8 हमारा रेवेन्यू है और टोटल हमारा 5.8 है, तो ये गैप क्या इंडिकेट करता है? 3% कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो दिस इज गुड, ठीक है, कि हमारा 5.8 है जिसमें से 3 हमारा कैपिटल पर्पस के लिए खर्च हुआ है हमारा, लेकिन 2.8% जो रेवेन्यू वाला है उसको हमें कम करना है। और एक अच्छी बात और भी है कि रेवेन्यू में से भी हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू कम है। कितना है? 1.8 है। इफेक्टिव रेवेन्यू में हमने क्या कम किया? रेवेन्यू माइनस कैपिटल ग्रांट टू द स्टेट्स एंड अदर एजेंसीज। तो बेसिकली अगर देखा जाए अल्टीमेटली तो 5.8 में से आपका 1.8 ही नॉन प्रोडक्टिव है, नॉन कैपिटल है, तो 4% हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। क्योंकि जो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है यही इंडिकेट करता है कि हमारा नॉन कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, ज्यादा शॉर्टफॉल। यस और नो? तो बेसिकली दिस इंडिकेट्स गुड पिक्चर कि 5.8 में से 4% जो है हमारा कैपिटल पर्पस के लिए खर्च हुआ है, तो इसलिए हमें ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी हमें कोशिश करनी है कम करने की, वो हम टारगेट कर रहे हैं। अभी हमारा 5.1 है, उसके बाद हमारा 4.5 है, उसके बाद हमारा फिर वापस 3% पे हम उसको लेके जाएंगे। ठीक है, हिम्मत नहीं हारेंगे, लगे रहेंगे। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बेसिकली अगर हम यहां पे देखें तो 5.8 हमारा फिस्कल डेफिसिट है और प्राइमरी कितना है? 2.3, यानी कि इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट कितना हो गया? 5.8 माइनस 2.3, 3.5। यानी कि अगर आप देखो रेवेन्यू जो है 1.8, ये सारा मैक्सिमम कहां से, अगर हम देखें 1.8 तो ये आपका इंटरेस्ट वाला ही है। आर गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली पुराने जो हमारे खर्चे हैं कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हमारा ज्यादा है, करंट खर्चों के लिए वजह से नहीं है। लेकिन वो भी तो हमारे खर्चे थे, वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। लेकिन अगर हम वैसे देखें ओवरऑल तो हम लोग बहुत मतलब गंदी पोजीशन में नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट इन ए बैड सिचुएशन। तो ये आपको जरूर याद रखना, ये वाला आपको रटा होना चाहिए, ये पूरा ट्रेंड और ये आपस में रिलेशन कि सबसे लोवेस्ट में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, उसके ऊपर प्राइमरी है, उसके ऊपर हमारा रेवेन्यू है और सबसे हाईएस्ट हमारा फिस्कल है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ डेट फाइनेंसिंग, मैंने आपको बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कहां से हम लोगों ने पैसा रेज किया। 28% पैसा कहां से आया था वो वाला, तो कहां से आया है ये सोचिए। जो मैं आपको पढ़ाता हूं क्लास में बजट में, कैपिटल डेट रिसीट कहां से आ सकती है? या तो गवर्नमेंट जो है तो शॉर्ट टर्म में करेगी, या तो लॉन्ग टर्म में, या तो आरबीआई से, या तो फिर आपकी पब्लिक सेविंग्स होंगी जिसको हम लोग स्मॉल सेविंग्स कहते हैं। तो वही यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं।
मार्केट बोरोइंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म वाली होगी, शॉर्ट टर्म वाली ट्रेजरी बिल होगी, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स जैसे कि नेशनल सेविंग स्कीम्स हो गई आपकी, प्रोविडेंट फंड हो गया, अदर रिसीट्स, इंटरनल डेट एंड पब्लिक डेट अकाउंट, एक्सटर्नल डेट जो हमने फॉरेन से लोन उठाया है, और हमारा ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस फ्रॉम द आरबीआई। तो ये हमारी आइटम्स होगी। इनके सिर्फ नाम आप देख लीजिएगा, ये हम ऑलरेडी पढ़ते ही हैं, इनका डेटा हमें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी हम देखें तो हाईएस्ट हमारा पैसा कहां से आता है? जीसैक से, यानी कि हाईएस्ट पैसा हम लोग रेस करते हैं लॉन्ग टर्म लोन से, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें सेकंड हाईएस्ट तो हमारा आता है सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। सेम चीज को हमने यहां पे ग्राफिकल फॉर्मेट में डाला हुआ है। दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेंटर के एक्सपेंडिचर कहां कहां पे जाते हैं? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर जाता है, यानी कि जो उनकी सैलरीज वगैरह जाती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, फाइनेंस कमीशन ग्रांट, अदर ग्रांट, ओके। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो पार्ट होते हैं, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा हुआ सेंटर का, और उसके अलावा जो हमने ग्रांट दी स्टेट्स को एसेट्स क्रिएट करने के लिए, तो हम दोनों को ही ऐड करते हैं हम लोग। ये ग्रांट हमने स्टेट्स को दी या हमने पीएसयूज को दी, और जो हमने खुद खर्चा किया, दोनों को मिलाकर के हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दिस थिंग वी हैव सीन ऑलरेडी, नॉट इंपॉर्टेंट। आई हैव गिवन यू अगेन, ये आपका अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दी हुई है, बजट में से मैंने चीज उठाई है यहां से, ठीक है। तो वही चीजें जो हमने अभी तक एक्सप्लेन की हैं उसको अलग अलग तरीके से यहां पे प्रेजेंट किया गया है, ओके।